He is going to be here in a minute, in a moment. I seek permission of the Honorable Chair to commence this session. Thank you, my Lord. Namaste. I welcome everyone to the fourth session of this event, Evidence Peak Analysis of Data on Children in Juvenile Justice System, Gaps, Challenges and Recommendations. This session shall be chaired by my Lord, Honorable Shri Justice Anand Pathak, Honorable Chairperson, Juvenile Justice Committee, High Court of Madhya Pradesh. We have esteemed panelists with us. I invite Ms. Swagata Raha, Director, Research and Co-Director, Restorative Practices and Full Proactive Health Trust to please join us. I request Mr. Anil Kumar, Secretary, Juvenile Justice Committee, High Court of Madhya Pradesh. I invite Mr. Amitabh Avasthi, Joint Director, Mission Vatsalya, Department of Women and Child Development, Government of Madhya Pradesh to please join us on the dais. I now request Shri Padmesh Shah, Additional Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, to please welcome our resource person, Ms. Swagata Raha, Director, Research and Co-Director, Restorative Practices and Full Proactive Health Trust. Thank you, sir. I request Shri Dharmendra Kumar Tara, Senior Faculty, Madhya Pradesh State Judicial Academy, to please welcome Mr. Amitabh Avasthi, Joint Director, Mission Vatsalya, Department of Women and Child Development, Government of Madhya Pradesh, by presenting him a sapling. Thank you, sir. I now request Honorable Chair to please give introductory remarks. Good morning, everybody. Since we are already overshot yesterday, and since we are short of time, this session has been transposed today. Therefore, I think it's better if experts give their opinion about the subject. Then we will discuss in group session. Please. Ma'am, if you would allow me. Sure. It's important to give introduction about our resource persons. They have traveled from afar. So this presentation is going to be given by Ms. Swagata Raha. She is a legal researcher, trainer and restorative practices facilitator with over 19 years of experience of working with leading human rights organizations in India. She has led several studies on the implementation of the POCSO Act and authored several publications related to child protection. I request her to please address us. Thank you very much. Good morning to everyone, respected Chair, Anil ji and Avasthi ji. मैं डेटा के बारे में बात करने वाली हूँ. कल सुबह हमने बहुत सारी दिल से स्टोरीज सुनी बच्चों की, और होता है जब हम नंबर्स देखते हैं हम भूल जाते हैं कि उन नंबर्स के पीछे भी हर एक बच्चे की एक स्टोरी होती है. तो मैं चाहती हूँ कि जो एम्पैथी कल हमने हमारे दिल में और हमारे मन में हम लेके गए थे, वही एम्पैथी के साथ हम इस डेटा को भी हम उसी नज़र से देखें. तो डेटा का जो सोर्स है दो है. एक है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो टेम्पलेट दिया गया है हर स्टेट को, जहाँ पे उन्हें चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ रिलेटेड डेटा भेजना था, और साथ ही उसमें कुछ डेटा उन्होंने मांगा था इस बार चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में भी. दूसरा जो डेटा पॉइंट है इस प्रेजेंटेशन का आधार, वो है मध्य प्रदेश जेजेसी के एजेस के अंदर हम एक प्री कंसल्टेशन सर्वे हमने किया है, जिसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सेज आई हैं. उसका एनालिसिस भी हम आपके साथ शेयर करेंगे. तो सबसे पहले जो डेटा आया है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ को लेके, इससे बहुत सारी चीज़ें लास्ट ईयर भी हमने इसके बारे में बात की थी, और इस साल भी उसी सारे इंडिकेटर्स में से जो डेटा आए हैं इसके बारे में हमको एक अंदाज़ा मिलता है कि मध्य प्रदेश में कितने सारे बच्चे हर साल
चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ के रूप में सिस्टम में अंदर आ रहे हैं। मैं हर डेटा पॉइंट के बारे में नहीं बताऊंगी, मेरा उद्देश्य इतना ही होगा कि इस डेटा को लेके हम आगे क्या कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, एक उदाहरण के रूप में है, डेटा हमें बताता है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत बच्चे छोटे अपराध में आ रहे हैं, गंभीर अपराध में आ रहे हैं और जघन्य अपराध में आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो श्रेणी है हम देख रहे हैं वो छोटे अपराध के हैं, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि जो जघन्य अपराध है उसमें एडल्ट की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। इसको अगर हम वापस थोड़ा और डिसएग्रीगेट करें कि इसमें पॉक्सो के केसेस कितने आ रहे हैं, एनडीपीएस के केसेस कितने आ रहे हैं, उस हिसाब से हम मध्य प्रदेश में इंटरवेंशन के बारे में सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट ये है कि अगर हम जेंडर की बात करें, कल हमने सुना आंसर का ये इनिशिएटिव रहा है शौर्य दीदी का, तो मैं ये सजेशन में रखना चाहूँगी कि अगर हम चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ की डेटा को देखें, 97.5% चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ मध्य प्रदेश में लड़के हैं। और हम देखते हैं कि एज कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जो है 16 से 18 के बच्चे हम देखते हैं हर एक अपराध की श्रेणी में उनको पाया जाता है। लेकिन आप देखिए 12 वर्ष के ऊपर से ही बच्चे हम देख रहे हैं विभिन्न अपराध में जुड़ रहे हैं। और कल हमने पेरेंटिंग की बात की, हमने कम्युनिटी सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स की ब्रेकडाउन की बात की, फैमिली की ब्रेकडाउन की बात की। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि शौर्य दीदी के साथ हमें शौर्य भैयाओं की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली फॉर आवर बॉयज़, क्योंकि उनके पास एक रोल मॉडल नहीं रहता है, एक पॉजिटिव मेल रोल मॉडल नहीं रहता है। सो ये एक हम्बल सजेशन है। डेटा हमें ये भी बता रहा है कि कितने बच्चे जेल जा रहे हैं हमारे, क्योंकि अभी जेजे एक्ट के अंतर्गत ये सिस्टम आ गया है असेसमेंट का, जिसके बाद जेजे भी भेज सकती है चिल्ड्रंस कोर्ट को मैटर, और चिल्ड्रंस कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसको हम अपने पास एक अडल्ट ट्रायल की तरह करेंगे या एक बच्चे के हिसाब से उसे देखेंगे। उस डेटा में थोड़ी डिस्क्रिपेंसीज है, उसके बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहूँगी, पर उससे पहले डेटा हमें ये भी कह रहा है कि जेजेबीज किस तरह से डिस्पोजिशन कर रही हैं, कितने डिस्पोजिशंस संस्थागत हैं और कितने गैर संस्थागत हैं, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फ़ाइन सबसे ज़्यादा जो है पेटी ऑफेंसेस में फ़ाइन लगाया जाता है, कम्युनिटी सर्विस की संख्या काफ़ी कम है। और ये लास्ट टाइम भी हमारी बात विमर्श में हुई थी कि कम्युनिटी सर्विस किस तरह के हो सकते हैं, उनके गाइडलाइंस क्या हो सकते हैं। प्रोबेशन अगर हम देखें, ये कहा जाता है जेजे सिस्टम का हार्ट है, जो हम कहते हैं कि बच्चों को हमने छोड़ दिया, लेकिन उस दौरान वो क्या वो शिक्षा से जुड़े हैं, क्या कोई वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़े हैं, क्या उनकी काउंसलिंग हो रही है, वो प्रोबेशन ही उसको सपोर्ट देने में हर स्टेप में हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे डेटा हमें ये बता रहा है कि प्रोबेशन की मात्रा तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि ये बेल के दौरान प्रोबेशन दी गई है या वो सेक्शन 18 के आधार पर जब केस ख़त्म हो रहा है उस वक्त का प्रोबेशन दिया जा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे डेटा की डिसएग्रीगेशन की ज़रूरत है, तो हमें एक क्लियर पिक्चर मिलेगा कब प्रोबेशन दिया जा रहा है। अगर हम बेल पे आते हैं, हम जानते हैं कि जेजे एक्ट के अंतर्गत बेल इज़ द रूल एंड इट्स डिनायल एंड एक्सेप्शन। एंड यहाँ पे अगर हम देखें, एंड ऑफ कोर्स हम समझते हैं कि डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे टेम्पलेट को भरने के लिए डेटा दिया गया है। तो अगर हम डेटा को देखें, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पेटी ऑफेंसेस ज़्यादा सीरियस और हीनस ऑफेंसेस में बेल दिए जाते हैं। तो क्या ये ग्राउंड रियलिटीज़ को मैच करता है? इस डेटा को और समझने की ज़रूरत है। हमें डेटा ये भी चाहिए कि पुलिस ने कितने बच्चों को पकड़ा और कितने बच्चों को बोला कि आप डायरेक्टली जेजेबी के सामने आ जाइए। तो हो सकता है कि जो बच्चे डायरेक्टली जेजेबी के सामने आ रहे हैं उनके केसेस में बेल का सवाल नहीं उठना चाहिए। दूसरा है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको जेजेबी ने बेल डिनाई किया है, ऐसे कितने केसेस हैं जहाँ पे केस पेंडिंग है जब ये डेटा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें लिए बिना इस डेटा का हम कोई निष्कर्ष नहीं लगा सकते हैं कि पेटी में कम दिया जा रहा है, हीनस में ज़्यादा हो रहा है। ये पूरी हमें एक छवि तैयार करने में कुछ गैप्स हैं जो हमें भरने होंगे। ये और एक डेटा पॉइंट है, कितने बच्चों को एज एन एडल्ट एमपी में ट्राई किया गया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 नंबर्स आए हैं, डेटा का सोर्स एक ही है लेकिन नंबर 2 आए हैं, एक है 147, एक है 170। तो अगेन इसका पॉइंट यही है कि किस तरह से हम एक सिस्टम बना सकते हैं ताकि ये सारी जो एरर्स हैं
हो सकती है इंटरप्रिटेशन का एरर हो जिन्होंने डेटा भरा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर ये ठीक से नंबर नहीं आते फिर हम उसका क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। और एक नंबर जो निकल के आया जो काफ़ी अलार्मिंग है वो है कि 936 चिल्ड्रन उनको ट्रांसफ़र किया गया है जेल जब वो 21 साल की उम्र उन्होंने कंप्लीट की है। तो इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। अगर हम देखते हैं कि इस अवधि में आप 147 ही ले लीजिए या 170, अगर इतने केसेस हम देख रहे हैं कि ट्रायल हो रहा है एज अडल्ट, तो 936 चिल्ड्रन कैसे गए हैं जेल। तो ये डेटा का एक सवाल उठता है कि कौन सा नंबर हम सही पकड़े। क्या हो सकता है ये कि 2016 से 18 के बीच में ये सारी केसेस कंप्लीट हुई हैं, इस वजह से नंबर इतना ज़्यादा है। दूसरा ये है कि प्लेस ऑफ सेफ्टी में किस तरह का रिहैबिलिटेशन हो रहा है, जिस वजह से चिल्ड्रंस कोर्ट इस नतीजे पे पहुंच रही है कि बच्चों का रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ है। तो ये सवाल उठ रहा है। हमें इस डेटा को लेके इवैल्यूएशन करना है हमारे प्लेस ऑफ सेफ्टी को, ना ही बच्चों को, क्योंकि हम कह रहे हैं कि बच्चे रिहैबिलिटेट नहीं हो रहे, पर बड़ा सवाल ये है कि उनको रिहैबिलिटेशन के लिए दिया क्या जा रहा है। और दूसरा कि इवैल्यूएशन किस तरह से किया जा रहा है, चिल्ड्रंस कोर्ट किस तरह से ये डिसीजन ले रही है कि इस बच्चे में कोई सुधार की संभावना नहीं है। तो ये एक पॉइंट है जो देखने की ज़रूरत है। तो इस भाग को मैं इस कंक्लूड करना चाहूँगी बिफोर आई गो टू द डिसेबिलिटी रिलेटेड डेटा। तो इनसे जो एक्शन पॉइंट्स इमर्ज होते हैं कि ज़रूर ये सब डेटा पॉइंट्स बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन साथ ही ज़रूरी है कि एक हमारा डेटा मैनेजमेंट सिस्टम हो जिसमें डेटा की हो, ताकि जो भी डेटा भर रहा है उनको आइडिया हो कि इसका मतलब ये है, ताकि डेटा जो आए वो रिलायबल हो, उसके आधार पे हम डिसीजंस ले पाए। हमें डेटा विभिन्न अथॉरिटीज़ से चाहिए। अभी शायद केवल जेजेबी से आया है, लेकिन इस डेटा जेजे का जो सिस्टम है, हमें डेटा चाहिए पुलिस से भी, डालसा से भी चाहिए, हमें डेटा चिल्ड्रंस कोर्ट से भी चाहिए, ऑब्जर्वेशन होम से भी चाहिए। तो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम हम कैसे बनाएं ताकि सारे जो स्टेक होल्डर्स है उनसे हम डेटा लेके ट्रायंगुलेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ग्राउंड की सिचुएशन क्या है। जो डेटा आता है वो हमें ये भी बता सकता है कि हमारे की फोकस एरियाज क्या हो सकते हैं जब रिसोर्सेज की कमी है। एंड आई थिंक येस्टरडे बहुत सारी बातें इसी पे हुई कि रिसोर्सेज की कमी है, पेंशन की संख्या कम है। ऑल ऑफ दैट is pointing to a resource crunch. So when resources are less, data can tell us हम किस पर ज़्यादा फोकस करें। डिस्पोजिशन क्या होता है जेजे सिस्टम में, ये जानना बहुत ज़रूरी है अगर हम पेंडेंसी को टैकल करना चाहें। ये जो डेटा शीट आई है सुप्रीम कोर्ट से, इसमें पेंडेंसी के बारे में रेट नंबर्स के सिवाय हम और कुछ नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि अगर हमें नहीं मालूम कि डिस्पोजिशन में क्या काउंट होता है या आपका ओपनिंग बैलेंस क्या है, हम पेंडेंसी रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू गो बियॉन्ड द नंबर्स। जैसे कल हमने उनके खुद की स्टोरी सुनी, हमें चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ की एक्सपीरियंस को भी जानना है। तो इस तरह की स्टडीज़ भी ज़रूरी है इस डेटा के साथ टू अंडरस्टैंड कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। अब मैं जाऊंगी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, उसके रिलेटेड क्या डेटा आए हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट के टेम्पलेट और जो एमपी का जो यूनिक फैक्टर है, हमारा जो प्री कंसल्टेशन सर्वे है, उससे क्या निकल के आए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ विद डिसेबिलिटीज़ का नंबर आप देख रहे हैं लगभग 0, केवल 3 बताए गए हैं स्पेशल होम में, बाकी 0। इसका नतीजा हम ये नहीं निकाल सकते कि चिल्ड्रन विद इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ में कोई डिसेबिलिटीज़ की संभावना नहीं है। यही हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि शायद यहाँ पे कोई डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग कुछ भी नहीं हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पे नंबर हम 0 देख रहे हैं। चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन का डेटा हम देखते हैं तो काफ़ी सारी नंबर्स आई हैं, और कल सूफिया मैम ने भी जो प्रेजेंटेशन की है उसमें कुछ नंबर्स आए हैं और दोनों में थोड़ा अंतर है। तो यहाँ पे भी एक जगह है जहाँ पे हमें देखना है डेटा किस तरह से आ रहा है, कौन से नंबर्स हम लेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया अडॉप्शन का नंबर 8 2 साल के बीच, और जबकि 23-24 में जो नंबर कल बताया गया था वो था 18। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखना है कि कौन से नंबर किस तरह से डेटा मेंटेन किया जा रहा है और क्या नंबर्स हो सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी का एक सवाल आया है, एंड यहाँ पे ये सारी चेक बॉक्सेस, ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि चेक बॉक्स आइटम ये नहीं है, लेकिन ऐसा इंफॉर्मेशन पूछा गया है तो एक चेक बॉक्स डाला गया है कि हाँ, ये सारी जो
JJB है, चिल्ड्रंस कोर्ट है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस है, ये सब एक्सेसिबल है टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। लेकिन MP के हमारे क्वालिटेटिव सर्वे से जो आया है, आप सभी से जो रिस्पॉन्सेज आए हैं, आपने हमें बताया है कि ये एक्सेसिबल नहीं है, राइट। सो ये भी एक है कि हम कैसे डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। With respect to disability commissioners and the fund for disabilities, persons with disabilities, ये चीज़ें हैं। कल ये बात उठ के आई थी कि स्पेसिफिकली बच्चों के लिए और 0 to 6 कैटेगरी के लिए कुछ भी स्कीम नहीं है, और ये डिसेबिलिटीज़ डिपार्टमेंट से भी यही उन्होंने बताया है। अब मैं चलूँगी प्री कंसल्टेशन सर्वे की तरफ, और यहाँ पे आई थिंक it deserves an applause, sir, because it was very short time given to complete the survey, and 291 people from MP across the board have completed the survey. So it is really hats off to everyone that आपने समय निकाला, आपने इस सर्वे का भाग लिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दिखाया है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से 38 लोगों ने भरा है, DCPU से 18, SJPU से 80 लोगों ने भरा है, CWC से 11, डालसा से 37, JJB से 57, जिसमें 44 प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट्स और 13 मेंबर्स ने भरा है, स्पेशल कोर्ट से 47, SPP पे थोड़ा नंबर कम है, केवल 3, बट इट इज़ इनक्रेडिबल कि इतने कम समय में सभी ने इसका भाग लिया है। तो कुछ रिस्पॉन्सेज मैं आपसे आप सभी से शेयर करूँगी। DCPUs को पूछा गया था कि क्या आपने ये डेटाबेस बनाया है जहाँ पे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स, काउंसलर्स, ट्रांसलेटर्स, इंटरप्रेटर्स का एक हमें नंबर और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, खासकर कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। तो यहाँ पे 15 DCPUs ने कहा कि हाँ, हमने एक ऐसा डेटाबेस बनाया है। फिर हमने पूछा रेस्पोंडेंट से कि क्या आपके पास ये डेटाबेस मौजूद है। ये सवाल हमने DCPU से नहीं पूछा क्योंकि उनको ये ऑब्लिगेशन है कि वो बनाए। हमने CCI से भी ये नहीं पूछा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि केवल 35% स्टेक होल्डर्स ने बताया कि हमारे पास ये डेटाबेस है। तो ये एक एक्शन पॉइंट हमारा निकल के आता है कि किस तरह से हर एक स्टेक होल्डर के पास इस डेटाबेस का होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी सिस्टम में पुलिस से लेके JJB, स्पेशल कोर्ट, CWC, किसी के पास भी ये बच्चा आ सकता है। हर किसी के पास ये डेटाबेस होना ज़रूरी है। तो हमने DCPU से पूछा था कि आपने ये जो डेटाबेस बनाया है, आपने किस किस को शेयर किया है। तो उन्होंने बताया कि हमने CWCs को दिया, SJPU को दिया, हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया है, DWCD को दिया है, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को दिया है, NGOs को दिया है, पर आपने शायद इन लोगों को नहीं दिया है जिनकी इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये है एडिशनल स्टेक होल्डर्स, हमारे JJBs, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, स्पेशल कोर्ट्स, इनके पास भी ये जो डायरेक्टरी है वो मौजूद होनी चाहिए। फिर हमने सभी से पूछा कि क्या आपने ऐसा कोई केस हैंडल किया है जहाँ पे बच्चा चाइल्ड विद डिसेबिलिटी था। और यहाँ पे हम देखते हैं 1 in 4 stakeholders who completed this survey have dealt with a child with disability. That's 25%. It is very high. तो यहाँ से हम ये एक्शन पॉइंट हमारा निकलता है कि हर किसी को ट्रेनिंग ज़रूरत है हाउ टू डील विद अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी। शायद ये हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अभी तक आया नहीं है। हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि हर किसी का एक इंटरफेस 1 in 4 इज़ अ वेरी हाई नंबर। तो दे नीड टू बी इक्विप्ड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी। हमने फिर पूछा जिन लोगों ने जिनका इंटरफेस रहा है बच्चों के साथ विद डिसेबिलिटी कि क्या आपने असिस्टेंस ली किसी एक्सपर्ट की। तो वहाँ पे हमने देखा लगभग 50% लोगों ने कहा कि हाँ हमने असिस्टेंस ली। बाकी जिन्होंने कहा कि हमने नहीं ली, उन्होंने ये कहा कि बच्चा कम्युनिकेट कर सकता था इसीलिए इसकी ज़रूरत नहीं थी, या कोई बच्चे के साथ था जो हमें समझा रहा था, या कुछ कोर्ट्स ने हमें बताया कि बच्चा कॉम्पिटेंट नहीं था एविडेंस देने के लिए, इसीलिए हमने इसका उपयोग नहीं किया। ये जो डेटाबेस है, ये और एक डेटाबेस है जो DCPU को तैयार करना होता है, वो है मेडिकल एंड काउंसलिंग सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़। और यहाँ हम पाते हैं कि केवल 5 DCPUs ने हमें बताया कि हमने ऐसा एक डेटाबेस बनाया है, और बाकी ने नहीं बनाया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये एक उनका ड्रॉबैक है। हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट में ऐसे सिस्टम्स मौजूद ही नहीं है। सो दिस इज़ अ गैप, एक इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप है जिसे भरने के लिए लॉन्ग टर्म हमें सोचना पड़ेगा क्या करना चाहिए। अब कुछ चैलेंजेस निकल के आए हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगी जो कल ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आई विल ओनली हाईलाइट जो अभी तक डिस्कशन में नहीं आया है।
तो एक जो चीज़ आई है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरफेस विद द जेजे सिस्टम, वो ये है चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम की डिसेबिलिटी की जो बात है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता नहीं चल रहा है। पुलिस उस वक्त शायद चाइल्ड में डिसेबिलिटी है लेकिन वो इनविजिबल है, वो देख नहीं पा रहे हैं, वो ऑब्वियस नहीं है। तो ये मैटर जो है कोर्ट के सामने तब आ रहा है जब एविडेंस के लिए बच्चा आता है। तो इट इज़ वेरी लेट एट दैट पॉइंट इन टाइम। हम जानते हैं पॉक्सो के अंतर्गत इट इज़ एन एग्रीवेटेड ऑफेंस इफ़ द चाइल्ड हैज़ अ डिसेबिलिटी, पर वो चार्जशीट में भी नहीं आता है बिकॉज इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो फैक्ट पुलिस हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो आया है वो है कि डिसेबिलिटी जो है सर्टिफिकेट्स मौजूद नहीं होते हैं, इस वजह से केवल अपीयरेंस के बेसिस पे या चाइल्ड के साथ इंटरैक्शन के बेसिस पे ही कोर्ट्स हमारी या जेजेबीज इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि ये बच्चा चाइल्ड विद डिसेबिलिटी है या नहीं। और कल हमने बहुत सुना, सभी से सुना कि बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ इनविजिबल होती हैं। तो यहाँ एक एरिया है जो हमें देखना है। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ के बारे में मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, दैट्स अ मेजर गैप। हमारे नंबर्स अगर ज़ीरो हैं तो वी रियली हैव टू थिंक कि व्हाट काइंड ऑफ स्क्रीनिंग नीड्स टू बी इन प्लेस। विद रिस्पेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज, सभी ने ये कहा कि उनके डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, एंड ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी इज़ अ गुड थिंग, बट हमें ये याद रखना है कि ये जो बच्चे हैं दे मे हैव एक्सपीरियंस्ड अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, या उनके साथ कोई क्राइम घटा है या वो किसी वल्नरेबल सिचुएशन में आ रहे हैं, तो उनके लिए एक फेस टू फेस इंटरफेस का होना ज़रूरी है। It will not be possible for people online to establish that kind of rapport and interpret what that child is saying. So that is something we really have to think about. जहाँ पे experts मौजूद है, एक ये प्रॉब्लम हाईलाइट किया गया है कि उनकी पेमेंट जो है वो बहुत कम है, वो उस कम पेमेंट में आने के लिए राज़ी नहीं है। जैसे कि ICPS स्कीम के अंतर्गत मैक्सिमम उन्हें 1000 रुपये ही मिल सकते हैं, और जबकि प्राइवेट अगर आप बुलाएं तो 2500 से 3000 उनका रेट होता है। तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एंगेज एन एक्सपर्ट। विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन गैप्स, एक मेजर गैप हाईलाइट हुआ है कि 164 का जो स्टेटमेंट है, जो अभी सेक्शन 183 है BNSS का, उसको वीडियोग्राफ नहीं किया जाता है जब वो चाइल्ड विद डिसेबिलिटी होता है, जबकि CRPC और BNSS बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इट इज़ अ मैंडेट, इट हैज़ टू बी रिकॉर्ड वीडियोग्राफ। और ये प्रोविज़न, ये वीडियोग्राफ न होने की वजह से दैट स्टेटमेंट कैन नॉट बी एडमिटेड एज एग्जामिनेशन इन चीफ, बिकॉज दिस प्रोविज़न in the CRPC and the BNSS allows for the statement to be admitted as examination on chief on the basis of which the child can be cross-examined. तो ये जो provision है इसका पालन नहीं हो पा रहा है। दूसरा जो मेजर इशू था वो है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, लिस्ट ऑफ एक्सपर्ट जिनसे पुलिस ने मदद ली थी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, ये सारी चीज़ें चार्जशीट में मेंशन नहीं की जाती है। तो फिर ये आगे चल के प्रोसिक्यूशन के लिए एक बाधा बन जाती है किस तरह से वो डिसेबिलिटी एस्टैब्लिश कोर्ट में करे। विद रिस्पेक्ट टू रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, बहुत सारी इश्यूज कल ही आ चुकी है, मैं केवल वो हाईलाइट कर रही हूँ जो अभी तक नहीं आया है। वो है लॉ में प्रोविज़न है कि आप एक व्यक्ति से मदद ले सकते हैं जो चाइल्ड के मैनर ऑफ कम्युनिकेशन से फेमिलियर है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑर्फन्ड होते हैं या फैमिली ने अबैंडन किया होता है और उनके साथ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है, साथ ही ये बच्चा कभी स्कूल गया नहीं है तो साइन लैंग्वेज भी वो नहीं से वो फेमिलियर नहीं है, तो ये एक मेजर गैप है। दूसरा है कि प्रोसिक्यूटर्स पहले से ही ये आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि इस बच्चे को एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो जिस दिन बच्चा आता है कोर्ट में उस दिन पता चलता है कि हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत है, और फिर कोर्ट के पास कोई उपाय नहीं रहता है उसे अडजर्न करने के अलावा और फिर एक्सपर्ट को ढूंढना। तो इस वजह से बच्चे को बार बार आना पड़ता है कोर्ट, ये एक चीज़ है। और एक है कि एक्सपर्ट्स जो हैं वो लीगल सिस्टम से फेमिलियर नहीं होते हैं, तो उनका जो पार्टिसिपेशन रहता है उसमें थोड़ा गैप आता है। प्रोसिक्यूशन को और कोर्ट को भी लगता है कि दे नीड ट्रेनिंग ऑन व्हाट द लीगल प्रोसेस इज। कल बात हुई थी हाउ इट इज़ देयर इज़ अ ह्यूज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑन फैमिलीज फॉर अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, एंड दिस इज ऑल्सो कम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रैवलिंग टू कम टू कोर्ट। जब वो कोर्ट आते हैं तो उनके लिए ये भी एक खर्चा है जो जिसका कोई नोबडी इज़ ऑफरिंग देम एनी अलाउंस। रिहैबिलिटेशन रिलेटेड चैलेंज,
CWCs के तरफ से और CCIs के तरफ से ये चैलेंज निकल के आया कि फैमिली को कैसे हम ट्रेस करें। ये बच्चे से हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर, इस बच्चे की फैमिली ने इसे त्याग दिया है, नहीं लेना चाहते, तो क्या उपाय रहते हैं सिवाय इसे उस बच्चे को चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रखने के लिए। ये भी एक आया इशू कि फैमिलीज़ होती हैं लेकिन वो सरेंडर नहीं करना चाहती है किसी वजह से, और सिस्टम में कुछ लोगों को लगता है कि इस वजह से बच्चे के लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन में एक बाधा आती है। इस पे ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है। कॉम्पनसेशन को लेके चिल्ड्रंस कोर्ट, स्पेशल कोर्ट से ये आया है कि किस तरह से चाइल्ड विद डिसेबिलिटी के केसेस में हम कॉम्पनसेशन कंप्यूट कर सकते हैं। क्या ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए, लमसम होना चाहिए, क्या ये इंस्टॉलमेंट्स में होना चाहिए, जहाँ पे फैमिली का कोई बैकग्राउंड नहीं अवेलेबल, उन केसेस में कॉम्पनसेशन कैसे देना चाहिए। और एक इशू है विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ, MTP का, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जहाँ पे लड़की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ है और वहाँ पे प्रेग्नेंट है, काफ़ी सारी डिलेज़ होती हैं जिसके वजह से वो 24 वीक्स का जो थ्रेशोल्ड है वो पार हो जाता है, और उसके बाद उपाय यही बचता है कि आप हाई कोर्ट के पास जाए। तो वो बहुत ही एक डेलिकेट सिचुएशन हो जाता है, कैसे इस डिले को हम कम कर सकते हैं। और जैसे पहले भी मैंने कहा था कि सारे जो हमारे कोर्ट रूम्स और JGBs हैं वो चाइल्ड फ्रेंडली, डिसेबिलिटी फ्रेंडली नहीं है। टू एंड ऑन अ गुड नोट, बिकॉज कुछ अच्छी चीज़ें भी निकल के आई हैं जो कैन बी रेप्लिकेटेड। तो यहाँ पे जो प्रॉमिसिंग इंटरवेंशंस आई हैं, एक स्ट्रक्चरल रूप की तरह से हमने देखा कि 13 डालसाज ने कहा कि उन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फैसिलिटेट किया है। तो कुल मिलाकर 13 डालसाज ने 182 डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स फैसिलिटेट किया। 15 DCPUs ने डेटाबेस बनाया हुआ है। 19 डालसाज ने सपोर्ट पर्सन का जो पैनल है उसका एक नियुक्ति हुई है। फिर 22 डालसाज ने कहा है कि उन्होंने स्पेसिफिकली प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है कम्युनिटी में ऑन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, और 89 चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को लीगल सर्विस और असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है। और कुछ जो प्रैक्टिसेस हैं आपके इंडिविजुअल लेवल पे आई हैं जो आपने शेयर किया है, जो आई थिंक कैन बी रेप्लिकेटेड बाय एवरीबडी। तो ऐसे हैं जहाँ पे स्पेशल कोर्ट ने चाइल्ड विक्टिम को भेजा मेडिकल बोर्ड के पास फॉर एन असेसमेंट, इवन दो वो चार्जशीट पे नहीं था। तो ये एक प्रोएक्टिव स्टेप स्पेशल कोर्ट ने किया है। फिर है कि सिमिलर स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जहाँ पे उन्होंने देखा कि केस रिकॉर्ड में डिसेबिलिटी का मेंशन नहीं था, पर उन्होंने पुलिस को बुला के फिर वो रिकॉर्ड चार्जशीट में डलवाया। रिहैबिलिटेशन कॉम्पनसेशन ऑर्डर किया गया है स्पेशल कोर्ट द्वारा या डालसा द्वारा फैसिलिटेट किया गया है, SJPU द्वारा फैसिलिटेट किया गया है। देयर हैव बीन लिंकेजेस टू स्कीम्स एंड स्कॉलरशिप्स बाय डालसा एंड चिल्ड्रंस होम। फैमिली रेस्टोरेशन हुआ है आधार के थ्रू। फिर SJPU ने प्रोड्यूस किया है बच्चे को CWC के सामने। SJPU ने असिस्टेंस लिया है थ्रू वीडियो कॉल टू अंडरस्टैंड व्हाट द चाइल्ड इज सेइंग विद एक्सपर्ट सिटिंग इन अ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। एंड स्मूथ एविडेंस की बात अगर हम करें, इन सारी जो सोल्यूशंस आई हैं इनमें रिसोर्सेज की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम देख रहे हैं कि JJB ने हम शेयर किया है कि जिस दिन बच्चा आ रहा है डिसेबिलिटी के साथ, उसी दिन पहले से ही एफर्ट्स लिए गए हैं ताकि एक्सपर्ट उसी दिन मौजूद हों, ताकि वो एडजर्न न हो इस वजह से क्योंकि एक्सपर्ट नहीं है। दूसरा, वो एक्सपर्ट को 30 मिनट देते हैं बच्चे के साथ रैपो बनाने के लिए बिफोर रिकॉर्डिंग द एविडेंस। So simple things which can really impact the way in which the child is participating in proceedings. Prior interaction स्पेशल कोर्ट के जज करते हैं बच्चे के साथ बिफोर रिकॉर्डिंग द एविडेंस, चेम्बर्स में रिकॉर्ड करते हैं या बच्चे को अपने पास बिठा लेते हैं। उस दिन जिस दिन उन्हें मालूम होता है कि चाइल्ड विद डिसेबिलिटी आ रहा है, उस दिन वो कम हियरिंग शेड्यूल करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि वो दिन लंबा चलने वाला है, उस बच्चे को ज़्यादा समय की ज़रूरत है। तो ये सारी बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो हर कोई इम्प्लीमेंट कर सकता है। लास्ट शब्दों की क्या मायने हैं, हमने कल भी सुना द डिफरेंस बिटवीन साइट एंड विजन एंड हाउ वर्ड्स मैटर। तो इस दौरान जब हमने आपके रिस्पॉन्सेस पढ़े, काफ़ी सारे डिफरेंट रेफरेंसेस टू डिसेबिलिटी आई, और शायद हमें ये भी सोचना है कि चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज़, क्या हम उन्हें नॉर्मल कहेंगे या हमें सामान्य कहेंगे, या व्हाट वुड बी अ मोर अप्रोप्रिएट वे ऑफ रेफरिंग टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ एंड चिल्ड्रन विदाउट क्रिएटिंग दैट बैरियर इन आवर माइंड्स। इंग्लिश में काफ़ी सारी
डिक्शनरीज मौजूद है, जैसे कहा जाता है कि हैंडीकैप हम नहीं कह सकते, लूनेटिक, डम हम लोग ये शब्द यूज़ नहीं कर सकते। क्या हम एमपी में एक हिंदी डिक्शनरी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमें लोगों को ऑल्टरनेटिव्स देने हैं। तो व्हाट कैन दैट ऑल्टरनेटिव बी, इसके बजाय आप क्या यूज़ कर सकते हैं? सो लेट्स गिव दैट सोल्यूशन एज वेल। फाइनली, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच? ये हमें इम्प्लीमेंटेशन को ट्रैक करने में मदद करेगा, हमें जो कंसर्न्स हिडन है वो बाहर लेके आता है। जैसे इस बार हम देख रहे हैं चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ भी एक इनविजिबल पॉपुलेशन है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ भी एक इनविजिबल पॉपुलेशन है। मॉनिटरिंग, अकाउंटेबिलिटी, इन सारी चीज़ों में डेटा के को साथ में लेके हम ये इस दिशा में बढ़ सकते हैं। एंड फाइनली, कहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेज है अगर कम है तो हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ क्या हो सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग में हमें क्या लाना है, और किन चीज़ों में रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड। थैंक यू। Thank you, ma'am. I now request Mr. Anil Kumar, Secretary, Juvenile Justice Committee, High Court of Madhya Pradesh, to please address us. Also, I'm going to request the resource persons to kindly adhere to the allotted time frames. Thank you. जी Honorable Chairman, sir, Honorable Ma'am, dignitaries present on the dais and participants, resource person. स्टेटिस्टिक्स को लेकर मैं भी मैम से एक बात में सहमत हूँ कि जो डाटा अभी सुप्रीम कोर्ट से भी हमने जब कलेक्शन कर रहे थे और जब वहाँ पास एक्सेल शीट आई तो हमारे पास भी ये चैलेंज आया, कुछ ऐसे पॉइंट थे जो बिल्कुल ग्रे थे जिस पे स्पष्टीकरण की ज़रूरत थी और टाइम ऐसा था, स्पष्टीकरण हमने लिए भी सरी सुप्रीम कोर्ट से। मिस्टर रवि हैं जो उस टाइम ये देख रहे थे जेजेसी। तो अभी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के डाटा पे बात करें तो अभी जो कलेक्शन करके हमने डाटा लिया उसमें अभी कोई भी ऐसा CICL नहीं है जो CWD जिसको हम क्लासीफाई कर पाएँ। लेकिन यूनिसेफ की फैक्ट शीट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ अगस्त 2022 की हम रिपोर्ट देखते हैं तो हर 3 बच्चे में से एक बच्चा इंस्टीट्यूशन में है जो चाइल्ड विद डिसेबिलिटी है और 25% जो यंग पीपल हैं वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं। इट मीन्स ये है कि विजिबल डिसेबिलिटी को अगर हम देख रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, पर इनविजिबल कहीं ना कहीं हमसे स्किप हो रहा है। अभी फ़िलहाल स्टेटस ये है कि हमारे पास नोटिफाइड गाइडलाइंस हैं रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस और वल्नरेबल विटनेसेस, 18 ऑब्जर्वेशन होम्स, 3 स्पेशल होम्स, 3 प्लेस ऑफ सेफ्टी, 38 ये डाटा एज पर डाटा है, 38 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स हैव एक्सेसिबिलिटी फीचर्स, दिस इज दे हैव रिपोर्टेड, 33 पॉक्सो कोर्ट्स आर equipped टू एकोमोडेट CWD। तो अभी ये जो एक्सेसिबिलिटी फीचर्स हैं इसको यही हमारे गैप भी हैं कि ये फिजिकल एक्सेसिबिलिटी है या बिहेवियरल एक्सेसिबिलिटी भी उसको हम एकोमोडेट कर सकते हैं। इसी पे हमने अपने गैप्स आइडेंटिफाई करें। गैप्स जो देखते हैं तो लैक ऑफ स्किल वर्कफोर्स जिसमें इंटरप्रेटर, स्पेशल एजुकेटर, साइको सोशल एक्सपर्ट, कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटीज़ जो ये मेरा मतलब इसमें मतलब इनविजिबल इन्फॉर्मेटी के बारे में, इनएक्यूरेट सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जैसे कल भी बात हो रही थी कि हमारे पास रिसोर्स बहुत कम है और इस हिसाब से उसको देखते हैं तो क्वालिटेटिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स नहीं आती। इनएक्सेसिबल फैसिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है और शायद पहला यही ध्यान आता है जब ये डाटा मांगा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, लेकिन इसमें बिहेवियर इनएक्सेसिबिलिटी भी है जिससे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है।
इनअप्रोप्रिएट एजुकेशन कुरिकुलम्स, हमारे कुरिकुलम में जैसे कल बात भी एक उठी थी, एक सजेशन भी आया, वो नोट भी करा है हमने कि सब्जेक्ट्स मैंडेटरी ना बनाए जाएं, जिनमें कुछ इंग्लिश और हिंदी का कल एक सजेशन आ रहा था। इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, हमारे असिस्टिव डिवाइसेस, कोई अभी ऐप या इसमें अभी हम ये एक कंसल्टेशन भी इसलिए थ्रो करा है कि कुछ ना कुछ इसमें कि जो बच्चा पहुंचता है जिस मल्टी ग्रास रूट के स्टेक होल्डर के पास, तो हमारे पास कुछ ऐसा जरिए कि कहीं वो अपनी बातें रख सके। लैक ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की हमें आवश्यकता है। इनएडिक्वेट रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स, जब हमें ये डिसेबिलिटीज़ कंफर्म नहीं होती, हमारे पास स्ट्रक्चर्ड वे से, इंस्टीट्यूशनलाइज वे से डाटा नहीं है, तो डेफिनेटली हमारे पास एक ये हिंड्रेंस हो आती है कि हमारे पास प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम नहीं हो सकता अभी। पुअर इन डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन है, डिपार्टमेंट के बीच में जो एक रिक्विजिट्स कोऑर्डिनेशन चाहिए वो अभी लैक कर रहा है। लिमिटेड अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन, इनएडिक्वेट लीगल रिप्रेजेंटेशंस, अभी जो हमारी टीम लीगल टीम तैयार है वो अभी इतनी अभ्यस्त नहीं है कि उनके साथ इंटरेक्ट कर सके, और ये रिसोर्सेज की ही एक वन ऑफ द रीजंस है इसमें। स्टिग्मेटाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, अभी मुझे ये पता चला था कि आईबोनो करके इंग्लिश में उन्होंने बहुत अच्छे एक सजेस्टिव वर्ड्स दिए, बट जैसे मैम ने अभी कहा कि हिंदी के लिए हम ट्रेस करते हैं कि हिंदी में कोई ऐसा मटेरियल मिले जो हेल्पफुल रहेगा। लैक ऑफ डाटा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, तो यही एक मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर प्लानिंग करनी है तो प्लानिंग अगर फॉल्टी होगी तो फिर उस पर जो एडिफिस तैयार होगा वो भी परफेक्ट नहीं हो सकता। इनकन्सिस्टेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इनसफिशिएंट मेंटल हेल्थ सपोर्ट, तो न्यूरो से रिलेटेड मुझे लगता है जो मोर अगर ब्रॉडली कहूँ तो जो अपनी मेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हमारे पास अभी ऐसे प्रेजेंट सिनेरियो में ना डाटा है ना ही हमारे पास रिसोर्सेज लग रहे हैं। इसके लिए रिकमेंडेशंस हैं ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलपमेंट, हमें अपने MIS को बहुत रोबस्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे कि हम ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स अपना डेवलप करें और ये आइडेंटिफाई करें। अल्टरनेट वोकैबुलरी डेवलपमेंट, जिसमें हिंदी की अभी सर्च गोइंग ऑन है। एक्सेसिबिलिटी असेसमेंट ऑफ CSCI, इसमें अभी एक सजेशन है कि सालसा से मिलकर हम एक असेसमेंट कंडक्ट करें और देखें कि ये इससे उनकी एक्सेसिबिलिटी इस पे इम्प्रूव हो सकती है कि नहीं। स्किल डेवलपमेंट इन कोर्सेज, इसी संबंध में स्पेसिफिक टेलर मेड हम स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज को भी एक वे हो सकता है गैप को ब्रिज करने का। पैनल ऑफ इंटरप्रेटर्स और स्पेशल एजुकेटर और साइको सोशल एक्सपर्ट्स, ये अभी ज्वलंत मांग है कि इसमें अभी हमारी मैपिंग इसमें अभी बहुत ज़्यादा होनी बाकी है। ट्रेनिंग लीगल एड लॉयर्स को हमें अभी ट्रेनिंग देनी है विद स्पेसिफिक कि वो प्रायोरिटाइज कर पाएँ कि CWD की उनकी लीगल रिप्रेजेंटेशन को लेके। ICP में सिर्फ एक ही है कि बच्चा डिसेबल है कि नहीं है, उसके बाद उसकी रिहेबिलिटेशन का जो एक डिटेल में फॉलोअप होना चाहिए वो भी लैकिंग है। तो इसमें मुझे लगता है कि ये ICP फॉर्म जो मतलब मैंडेटरी रहता है हर एक के लिए और जो बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसमें अभी बहुत ही एक लिमिटेड स्कोप है कि बच्चा डिसेबल है कि नहीं, इतना ही उसके साथ, तो इसको एक एनहांस करने की ज़रूरत है। कंप्लायंस विद लीगल प्रोविजंस, ऑफ कोर्स उन सारे प्रोविजंस को प्रैक्टिकल शेप देने के लिए हमारे पास अभी बहुत रोड मैप तैयार है। डेवलपमेंट ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी है जो उनको हेल्प दे। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम्स, ये वही बात है कि जिसमें अभी सिर्फ उनको मैंडेटरी कोई हम कोर्स का कुरिकुलम ना ऑफर करें। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी से भी हमारी अपेक्षाएं हैं कि वो इसमें बच्चों के लिए जो एक सेंसिटाइज करके और उनको इंक्लूसिव और ये सिस्टम दे। मेंटल हेल्थ सर्विसेज, स्पेसिफिक हमारी मेंटल हेल्थ की जो सर्विसेज हैं इसका भी हमें यही है कि पूरी प्रेजेंटेशन में मुझे लगा कि जो विजिबल हमें डिसेबिलिटी दिखती है वो तो हम ठीक है, उसके लिए अभी हमारे पास और भी काम करने बाकी हैं, लेकिन इनविजिबल के लिए अभी डाटा भी कैप्चर नहीं है। तो मेरी यही है कि इनविजिबल पे आपके भी सजेशन इनवाइट हैं कि उसको और कैसे रोबस्ट करें, किन किन स्टेक होल्डर्स को लें, क्या स्कीम्स डिवाइस करें, किन किन को इन्वॉल्व करें। और
जिससे कि हम एटलीस्ट इस गैप को फिल कर पाएँ। और उससे पहले डाटा की जो अभी जो शॉर्टकमिंग दिख रही है, तो सबसे पहले ये कोई एक सजेशंस मैं इनवाइट करूँगा कि किस तरीके से इस डाटा को स्ट्रक्चर्ड और या इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में दिए। थैंक यू। Thank you, sir. Excuse me. I now request Mr. Amitabh Awasthi, Joint Director, Mission Vatsalya, Department of Women and Child Development, Government of Madhya Pradesh, to please address us. उसको लगाना है। दो दिन की कंसल्टेशन जो लगातार चल रही है, उसके बाद इतने सारे एक्सपर्ट्स के बोलने के बाद मेरे लिए शायद बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। मुझे लगता है सारी चीज़ें सारे लोगों ने कवर कर ली हैं, कुछ भी बचा नहीं है और सारे एक्सपर्ट्स ने सारी बातें कही हैं। फिर भी मैं कुछ बताना चाहूँगा और छोटा से मेरा प्रेजेंटेशन है, जहाँ पे ऐसा लगेगा मुझे कि वो रिपीटिशन हो रहा है तो मैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मैं जेजेसी कमेटी के जो अध्यक्ष हैं माननीय जज श्री आनंद पाठक सर, उनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी शानदार कंसल्टेशन के बिना शायद हम CICL और CNCP जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी बच्चे हैं उनके बारे में शायद इतना कुछ नहीं जान पाते। डेफिनेटली हमारे पास उसका कोई डेटा नहीं है, एक्सेप्ट करने में मुझे और किसी तरह से कोई भी गुरेज नहीं है कि आज की तारीख में हमारे पास मिशन वात्सल्य में एक MIS का पोर्टल बना हुआ है, लेकिन उसमें चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए अभी कोई जगह नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के दूसरे भी जो पोर्टल हैं, दूसरे भी MIS बने हुए हैं, वहाँ पर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के डेटा अभी केवल मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक न्याय विभाग जो उससे कंसर्न रखता है शायद उनके पास ही वो डेटा है, बाकी लोगों के पास वो डेटा नहीं है। और जिसके कारण पीछे स्वागता राहा जी ने जो बताया, अनिल कुमार सर ने बताया और बाकी लोगों ने भी बताया, वो डेटा हमारे पास इसी वजह से नहीं है कि हमारे पास MIS पोर्टल में उसकी जगह नहीं थी। और शायद ये कंसल्टेशन जो मीट है, इसके बाद डेफिनेटली हम सब लोग उस पोर्टल में ये प्रावधान करने की कोशिश करेंगे और उन बच्चों को पहचानते तो हैं हम, और वो माएँ पहचानती हैं, वो परिवार पहचानते हैं, हम आजू बाजू के लोग पहचानते हैं, लेकिन हमारे पोर्टल में उसकी जगह नहीं है, तो वो हम देने की निश्चित ही कोशिश करेंगे। जहाँ तक एक बात और कहना चाह रहा था मैं कि जैसे अभी स्वागता जी ने संभवतः कहा कि जो जजेस हैं जब वो सुनवाई करते हैं और सुनवाई के दौरान जब उनको बेल देने की बात आती है तो वो शायद सारे एस्पेक्ट्स पे विचार नहीं करते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जजेस विचार करते हैं, लेकिन जो मेरा प्रोविजन ऑफिसर है, जो महिला बाल विकास विभाग या और दूसरी जगह से अपॉइंट हुआ है, वो शायद उन चीज़ों पे सारी बातें अपनी नहीं रखता है, जिसके कारण हमारा जो बच्चा है वो बेल नहीं प्राप्त कर पाता है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि भोपाल के जो प्रोविजन होम ऑब्जर्वेशन होम है, वहाँ कुछ बच्चे थे जो तथाकथित हीनियस क्राइम में है, या तो वो 376 वाले हैं या 302 वाले हैं या चोरी के गंभीर आरोपों से बंद हैं। और
ये पता चला कि कई महीनों तक उनको बेल नहीं मिली है। तो मैंने सोचा कि प्रोविजन ऑफिसर से मैं बात करूं। मैंने प्रोविजन ऑफिसर को बुलाया, प्रोविजन ऑफिसर से बात की, तो उनका कहना था कि सर इनको हम छोड़ कैसे सकते हैं, ये तो 376 के आरोपी हैं, ये 302 के आरोपी, इनको हम कैसे छोड़ सकते हैं। पहले ही मेरे दिमाग में ये बना हुआ है कि हम इन बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं। ये हम कारण नहीं देख रहे हैं कि किस कारण से ऐसा हुआ होगा। अगर उस बच्चे से आप मिलते तो आपको लगता कि शायद वो बच्चा वैसा नहीं है, या देख के ऐसा किस परिस्थितियों में, किन कंडीशंस में वो बच्चा वहाँ पर आया है या इस क्राइम को कमिट किया है, उस चीज़ को हम नहीं देख पा रहे हैं। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि हमारे जो प्रोविजन ऑफिसर्स हैं या जो हमारा पूरा स्टाफ है, उसका कोई ओरिएंटेशन नहीं है, उसका कोई सेंसिटाइजेशन नहीं है, उसको हमने इस तरह से प्रशिक्षित नहीं किया है। हम केवल प्रशिक्षण तब देते हैं जब बहुत ज़्यादा हमको लगता है कि ये हमारा टारगेट ख़त्म हो रहा है, टारगेट हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं। दूसरी बात एक और है, पूरी बात रखने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि स्टाफ की डेफिनेटली कमी है विभाग में, और उसको हम भरने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी हम भर कर फिर हम इस परिस्थिति में आएंगे कि हम कुछ बोल पाएँ, क्योंकि बहुत स्टाफ अभी नहीं है, लगभग 50% स्टाफ नहीं है, उसको विभाग भरने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा सर का कि उनके कंसल्टेशन मीट के इस विचार के कारण हम लोग आज उन बच्चों के कारण जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं उन पर विचार करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, और हम सबके दिमाग में ये बात आ रही है कि हम लोग को ये काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, डेटा सब ने बताया यहाँ पे, हम सब लोगों को कोई ना कोई डेटा बताया कि कितने बच्चे हैं जो आज डिसेबिलिटी के शिकार हैं। आप इसको देखेंगे तो इसमें एक आंकड़ा दिख रहा है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि कितने बच्चे हैं जो देश में अर्बन में डिसेबल्ड हैं और कितने रूरल में डिसेबल्ड हैं। आप देखिए 2.24% बच्चे हैं जो बच्चे नहीं लोग हैं जो अर्बन एरिया में डिसेबल्ड हैं, और 2.43 मेल हैं और 2.03 फीमेल हैं। अगर आप रूरल में और अर्बन में देखेंगे तो उनकी संख्या कम है, लेकिन आप देखिए कि सारी सुविधाएं कहाँ पर केंद्रित हैं। आपका जो बोर्ड है, जो मेडिकल बोर्ड है, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर है, या आप कहिए डिविजनल हेडक्वार्टर पे CRC बना हुआ है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र का जो परिवार है जहाँ पे डिसेबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। उस बच्चे को, उस परिवार को बार बार जिला मुख्यालय में आके परेशान होना पड़ता है, 10-10 बार 5-5 बार उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद भी शायद उसका UDID कार्ड नहीं बनता है। ये थोड़ा सा अलार्मिंग, मतलब ये फिगर है। अब ये 2011 के जो सेंसस के आंकड़े हैं, इस पे आगे हमको काम करने की ज़रूरत है। देखिएगा इसके बाद एक और आंकड़ा है, ये सेंसस के ही आंकड़े हैं जिसमें सीइंग, हियरिंग और चलने फिरने में जिनको दिक्कत होती है उनके आंकड़ों को मैंने दिखाने की कोशिश की है। और ये वो आंकड़े हैं जिसके आधार पे हमारी गाइडलाइन या हमारे जो कार्यक्रम हैं वो बन सकते हैं कि हमको किन बच्चों पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये भी मैंने बताने की कोशिश की है कि 19 साल तक, 18 साल तक कितने प्रतिशत बच्चे हैं। लगभग 4.77% मेल और 4.22% फीमेल जो हैं वो डिसेबल्ड की श्रेणी में आते हैं 19 साल से कम। हमारा काम 18 साल तक के बच्चों के लिए है, हम विचार कर सकते हैं इस पे। महिला एवं बाल विकास विभाग जो है, मेरे कमिश्नर ने और मध्य प्रदेश शासन के दूसरे कमिश्नर्स ने बताया कि हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। डेफिनेटली चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी 2020 में विभाग ने बनाई है, जिसके तहत इस तरह इन बच्चों के ऊपर काम करने के लिए, और उनमें भी जो विकलांग बच्चे हैं या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ प्रावधान उस पर दिए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी हम इसके लिए ऑपरेशनल गाइडलाइन नहीं बना पाए हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं। डेफिनेटली हम आगे के आने वाले महीनों में जो इसकी गाइडलाइन है उसको बनाकर पूरे प्रदेश में लागू करने की कोशिश करेंगे। तो केवल यहाँ पर मैं अपनी पीठ इसलिए थपथपा सकता हूँ कि केवल मध्य प्रदेश में हम लोगों ने चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बना ली है, जिस पे काम करने की ज़रूरत है।
बहुत आगे नहीं जा रहा हूँ इस पे बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सब लोगों ने बता दी हैं कि इन बच्चों की देखरेख, सुरक्षा और दूसरे कामों के लिए प्रावधान किए हुए हैं। इस पॉलिसी में भी बहुत सारे प्रावधान हैं। सब ने बताया कि कौन से जो सर्विसेज हैं या कौन सी सेवाओं के लिए हमारे पास लोग हैं। CWC मेंबर कितने हैं, JJB मेंबर कितने हैं, DCPU के लोग कितने हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन स्टाफ हमारा काम कर रहा है, CCI का स्टाफ भी हमारा काम कर रहा है। लेकिन आपने देखा लास्ट लाइन को मैंने रेड करके रखा है। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि रेड क्यों, सॉरी नहीं दिख रहा है क्या, हाँ सॉरी, ये जो रेड डला हुआ है इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल ये है, आप देखिए CWC मेंबर्स, JJB मेंबर, DCPU का स्टाफ, हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन के लोग और CCI का स्टाफ, ये सब है। और लेकिन फिगर्स में मैंने रेड किया हुआ है टोटल नंबर पे। वो इसलिए किया हुआ है कि वो अलार्मिंग है मेरे लिए भी कि ये स्टाफ जो है केवल यही लोग काम कर रहे हैं। CWC में 255 लोगों की ज़रूरत होती, वहाँ केवल 62 लोग काम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, यद्यपि उसका कारण ये है कि लगातार 2 इलेक्शंस के कारण, लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस के कारण, एप्लीकेशंस के आने के बाद भी हम लोगों की भर्ती नहीं कर पाए। कोशिश है हमारी कि हम इस महीने भर्ती कर लेंगे। चाइल्ड हेल्पलाइन के भी पदों की भर्ती करना है, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी भर जाए। और DCPU का स्टाफ, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि DCPU का स्टाफ कम है, सॉरी। इसके अलावा आप देखिए कि साइकेट्रिस्ट, ट्रांसलेटर, सब ने बताया, इंटरप्रेटर, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, सपोर्ट पर्सन, साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स सभी हैं। लेकिन उसमें हमारे ये जो संख्या है, मुझे लगता है प्रदेश का आकार जितना बड़ा है, जितनी बड़ी जनसंख्या है, उसके आधार पे ये फिगर्स बहुत कम है। इस पे हमको इनको बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हर बच्चे को, जो भी नीडी बच्चा है, उस सबको ये सुविधाएं मिल सकें। अभी यदि आप पूरे प्रदेश में 40 साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं तो मुझे लगता है वो फिगर बहुत ही कम है। हमारे 317 तो तहसील हैं या ब्लॉक्स हैं, लेकिन इनकी संख्या कितने कम है। सर को मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ से जो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हैं उनको मैप किया हुआ है हमारे जो भी CCIs हैं उनके साथ। और हेल्थ डिपार्टमेंट से भी हमको कुछ फिगर मिले हैं कि जिसमें 51 डॉक्टर, 51 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और 26 साइकेट्रिक नर्स हैं, उनको भी हम जल्दी ही मैप कर लेंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये जो साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स में कल जैसा रामाराव सर ने बताया, सामाजिक न्याय विभाग के कमिश्नर ने, कि उनके कुछ ट्रेनिंग स्कूल्स हैं जो साइन लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले महीनों में या साल में हम अपने लोगों की भी कुछ ट्रेनिंग करें। और जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, उनसे भी ये मेरी गुजारिश रहेगी कि यदि वो लोग भी ऐसे हमारे एक्सपर्ट्स को इन स्कूल्स में भेजकर एक्सपर्ट्स बनाना चाहें ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। क्योंकि सरकार के अकेले प्रयास से मुझे लगता है कि ये प्रयास पूरा नहीं हो पाएगा। चाइल्ड सर्वाइवर्स ऑफ वायलेंस के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि नंबर ऑफ केस रजिस्टर्ड अंडर पॉक्सो जो था 3592 है, और नंबर ऑफ विक्टिम्स ऑफ पॉक्सो एंड चाइल्ड मैरिज रजिस्टर्ड इन वन स्टॉप सेंटर्स 59 और 65 के फिगर हैं। ये आपको की जानकारी के लिए मैं रख रहा था। इसके अलावा जो चिल्ड्रन होम में जैसा अभी बताया कि ये फिगर नहीं मिले हमको, हम लोगों ने कोशिश की है कि चिल्ड्रन होम में कितने बच्चे डिसेबल्ड हैं, सा में ऐसे कितने बच्चे हैं, ओपन शेल्टर होम में कितने हैं और वन स्टॉप सेंटर में कितने लोग हैं, तो उसकी जानकारी हम लोगों ने लेने की कोशिश की थी। लेकिन ये भी मैं आपको बताऊं कि ये कोई MIS नहीं है। जैसे हमको लगा कि JJC के सामने मीटिंग होने जा रही है तो हम लोगों ने रात दिन कोशिश करके एक गूगल शीट डाल के ये डेटा इकट्ठा करने की कोशिश की है। तो MIS पे हम लोग काम करेंगे और जल्दी ही इस स्थिति में आएंगे कि हम डेटा आपके सामने रख सकें। जैसा कल भी अस्थाना सर ने बताया था कि स्पॉन्सरशिप बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें बच्चों को हम 4000 रुपये ऐसे बच्चों को जो CNCP हैं उनको देते हैं। उसमें भी कितने डिसेबल्ड हैं आप देखिए कि 13000 बच्चों को हमने लाभान्वित किया है। जो हमारा गूगल शीट है उसके अनुसार हमने जानकारी इकट्ठी की है कि केवल 62 बच्चों को हम लाभ दे पाए हैं।
फोस्टर केयर में भी केवल 2 बच्चों को लाभान्वित किया और आफ्टर केयर में 19 बच्चों को लाभान्वित किया है। तो स्कीम बहुत अच्छी है, हमारी साइट पे भी उपलब्ध है, भारत सरकार की मिशन वात्सल्य की साइट पे उपलब्ध है, लेकिन हमको आगे काम करने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। एक बात और बताना चाहूँगा कि भारत सरकार भी मिशन वात्सल्य के अंतर्गत स्कीम फॉर केयर एंड सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स के ऊपर काम कर रही है और 10 लाख रुपए का प्रोविज़न उनने हर ज़िले के लिए किया हुआ है। इस साल हम इस स्थिति में आएंगे कि इस तरह से जो भी पॉक्सो विक्टिम हैं उनको लाभान्वित कर सकें इस राशि से। ये हर प्रदेश के लिए, हर ज़िले के लिए उनने प्रावधानित किया है और इसके लिए अब SNA अकाउंट हम लोगों ने खोल लिया है, जल्दी ही राशि हमको प्राप्त हो जाएगी। केस स्टडी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, सब लोगों ने की, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी बच्चों ने विचार रखे। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक छोटी सी केस स्टडी है जिसमें ये हर्ष नाम का बच्चा है जिसके फादर की डेथ होने के बाद उसके जो गार्जियन हैं, मतलब जो उसके इन लॉ, मतलब बच्चे के दादा दादी हैं, उनने घर से निकाल दिया। अब माँ भी इस स्थिति में नहीं थी कि वो कोई कहीं से अर्निंग कर पाती। उसका एक छोटा भाई भी है जिसके कारण उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी और ऐसे में महिला एवं बाल विकास विभाग की जो स्पॉन्सरशिप स्कीम है उससे उसको लाभ मिला और बच्चे को आज की तारीख में जो स्पॉन्सरशिप के कारण परिवार में लगभग 8,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराने में हम लोग सफल हुए हैं। भोपाल जिला महिला बाल विकास अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी के इनिशिएटिव से, तो यहाँ पे उस बच्चे को लाभान्वित किया जा सका है। पूरे प्रदेश में हम लोग इस तरह से जो भी इस तरह के लोग हो सकते हैं उनको हम लाभान्वित कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। हाँ, ये भी आपको बता दें कि कई बार फ्रॉड या ख़राब से मतलब मैसेजेस इस तरह के चलते हैं जिसमें कि आपको इन योजनाओं का लाभ मिल सकता है करके बहुत सारे मैसेजेस वायरल होते हैं, तो उसके लिए भी हमको सावधान रहना है। चैलेंजेस के बारे में जहाँ तक मैं बताऊँ, चैलेंजेस के बारे में सब लोगों ने बताया, वही चैलेंजेस हैं, कोई नए चैलेंजेस नहीं हैं कि सभी विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत है। लैक ऑफ MIS है, MIS नहीं है। इसके अलावा जो CWC, JJB, DCPU, SJPU, वन स्टॉप सेंटर और चाइल्ड लाइन के जो ऑफिसर्स हैं या कर्मचारी हैं उनको और ओरिएंटेशन की ज़रूरत है, जो ओरिएंटेशन अभी नहीं है, खासकर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए। उसके बारे में सब लोग बात कर चुके हैं। जो इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो भी नहीं है, मैंने पहले ही बताया आपको। स्पेशलाइज सर्विसेज नहीं हैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए, और स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम के बारे में भी इसकी भी पॉसिटी है प्रदेश में। रिम्यूनरेशन के बारे में बहुत सारे लोग ने सभी एक्सपर्ट्स ने बताया कि जो भी एक्सपर्ट हैं उनको रिम्यूनरेशन बहुत कम है। तो इसी वजह से ऐसा होता है कि जब एक एक्सपर्ट आता है तो वो ही सोचता है कि एक व्यक्ति मिला है उससे ही पूरी राशि उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि उसको लगता है कि और कोई काम मिलेगा नहीं या काम नहीं होता है, तो वो बेचारा जो भी एक काम मिलता है उससे ही पैसा लेने की कोशिश करता है, और पैसा नहीं मिलता तो वो फिर दोबारा आने में भी कतराता है कि उसको लगता है कि रिम्यूनरेशन बहुत कम है। गाइडलाइन बहुत बेहतर नहीं बनी हुई है, इसको एक्सेप्ट करने में कोई भी मुझे गुरेज नहीं है, पहले भी मैंने बताया, तो इसको थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। यही मुझे लगता है कि कुछ और एक्सपीरियंस शेयरिंग की बात मैं कर रहा था कि मेडिकल बोर्ड, जैसे मैंने बताया कि जिन बच्चों के UDID बनना रहते हैं या जो विकलांगता सर्टिफिकेट बनने रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा लोग होते हैं, उनको शहर में आना पड़ता है, कई चक्कर लगाना पड़ता है। तो हमको ये सोचना चाहिए कि क्या हम ये जो मेडिकल बोर्ड है उसको ब्लॉक लेवल तक ले जा सकते हैं ताकि वहाँ पर हम बच्चों का UDID कार्ड बना सकें, क्योंकि शहर में आने में उनको बहुत परेशानी होती है, और एक बार आने की बात नहीं है, बार बार आने में बहुत परेशानी होती है। तो ये देखने की ज़रूरत है। आयुष्मान कार्ड, जहाँ तक है, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा एक ऑफिसर रखा हुआ है ताकि वो पूरे प्रदेश में लगातार मॉनिटर करें, कहीं कोई दिक्कत आ रही तो उसको दूर करने की कोशिश करें। उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। फिर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं उनके साथ और भी परेशानियां हैं।
मेरी कुछ पिछले दिनों बात हो रही थी तो उनने बताया कि जब वो थंब इम्प्रेशन लगाने जाते हैं आधार कार्ड बनाने के लिए तो उनके थंब की चूँकि उनकी लाइंस हैं या जो रेखाएं वो नहीं दिखाई पड़ती तो थंब इम्प्रेशन काम नहीं करता है। तो मुझे आधार कार्ड वाले ने बताया कि दोनों हाथ शायद सामने रख के यदि आधार कार्ड बनाने की फ़ोटो लेते हैं उसके बाद इस तरह के आधार कार्ड बन जाते हैं। लेकिन कितने लोगों को इसके बारे में जानकारी है? हाँ, कई ऐसे वो होते हैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं जिनके दोनों हाथ नहीं है या एक हाथ नहीं है। तो वो जब समस्या है तो किस तरह से आधार कार्ड बनेगा? क्या सारे जितने ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं उनको इसकी जानकारी है? तो ये इसके बारे में ओरिएंटेशन और करने की ज़रूरत है। पॉक्सो विक्टिम के बारे में कि मेडिकल बोर्ड, जैसा कि अभी स्वागता जी ने कहा था कि समय पे उनके अबॉर्शन के या उसके निर्णय नहीं हो पाते हैं और वो आगे केस चला जाता है, 21 सप्ताह से ज़्यादा चला जाता है, तो उसके बारे में भी हमको समय पे निर्णय लेने की ज़रूरत है। स्कूल में एडमिशन भी एक बड़ा मुद्दा है। पिछले दिनों बात हो रही थी कुमावत जी से, जो उज्जैन के सेवाधाम आश्रम से हैं, जो इस तरह के बच्चों को रखते हैं। तो वहाँ पर उनने ये बताया कि बच्चे बहुत सारे परिवारों में, जहाँ पे संस्थाएं काम कर रही हैं वहाँ तो बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन जहाँ पर इंडिविजुअल जाते हैं जब स्कूल में, तो उनमें स्कूल के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो स्कूल में एडमिशन से बच्चों को डिनाई कर देते हैं। उनका कहना है कि और भी कुछ सामान्य प्रॉब्लम होती तो हम बच्चे का गरीब होता तो हम एडमिशन करा लेकिन यदि कोई डिसेबिलिटी है तो हम उस बच्चे को एडमिशन नहीं दिला पाएंगे। तो ये थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। जबकि स्कूल में एडमिशन से यदि कोई मना करता है तो वहाँ पे पर्याप्त उस पर फाइन का प्रोविज़न भी है। ये कैपेसिटी बिल्डिंग वाली बात हम लोगों ने कर ली। इसके बारे में फिर से मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। और कोई जो खासकर जो ऑटिज़म वाले बच्चे हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम सिंड्रोम जिनको है, उनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, जैसा सभी ने बताया है। ओरिएंटेशन ऑफ CWC, JJBA और अदर फंक्शनरीज, इसके बारे में बात हम कर चुके हैं, इस पर नया कुछ नहीं है। संवेदनशीलता की कमी भी है। कई बार ये भी लगता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है, कई बार ये भी लगता है कि बच्चे को कोई सुविधा, बच्चे या उसके परिवार को कोई सुविधा ज़बरदस्ती ना मिल जाए। बच्चा, यहाँ एक और बात एक और केस स्टडी बताना चाह रहा था मैं कि बच्चे को रात में दिखाई नहीं देता है। अब वो बच्चा सुबह जब वो पहली बार गया तो उसके रेटिना को चेक करने के बाद आधार कार्ड बनाने के लिए उसने चेक किया। दोबारा जब वो दूसरी बार गया या 2-3 महीने का डिले हो गया तो उसको दिखाई देना बंद हो गया, तो उसके कारण उसका कार्ड नहीं बन सका। तो ये भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पे हमको काम करने की ज़रूरत है। ये सारी बातें मुझे लगता है कि बता चुके हैं हम लोग, और सारे एक्सपर्ट्स इस पे अपनी बातें रख चुके हैं, इसलिए नया कुछ बताने का नहीं है। सर ने जो बहुत अच्छा ये ट्रेनिंग जो शौर्या दीदी का कराया नेशनल फॉरेंसिक स्टेट यूनिवर्सिटी गुजरात से, तो वो लगभग 28 एक्सपर्ट्स, मतलब 28 लोगों की ट्रेनिंग हुई है और 4 जिलों के शौर्या दीदी की ट्रेनिंग हुई है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले महीनों में हम इन 4 जिलों के सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की और सभी थानों के जो भी ऊर्जा डेस्क वो हैं, प्रभारी हैं, उनकी ट्रेनिंग हम करा देंगे। ये सर को हम आश्वस्त करना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट पूल को भी बढ़ाया जाने की आवश्यकता है। डिस्ट्रिक्ट पूल अभी बहुत कम है, जैसा मैंने बताया, तो इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। इंडिविजुअल केयर प्लान पे बहुत बात हुई। लास्ट में स्वागता राहा जी ने बताया कि इंडिविजुअल केयर प्लान तो बनता है, लेकिन इंडिविजुअल केयर प्लान पे हम लोगों को, अनिल सर ने बताया कि इस पे हमको काम करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए इस इंडिविजुअल केयर प्लान को फिर से रिवाइज़ करना चाहिए और इस पे विचार करना चाहिए।
मुझे लगता है कि मैंने बहुत समय ले लिया सर और बहुत सारी बातें अपने रखने की कोशिश की, तो थैंक यू सो मच। निश्चित ही इस कंसल्टेशन से हम लोगों को बहुत दिशा मिलेगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले साल में हम इस तरह के बच्चों की समस्याओं से उबरने के लिए, उनको उबारने के लिए काम करेंगे, हम सब मिलकर काम करेंगे। थैंक यू सो मच। For offering these insights, I request the Honorable Chair to please address us. ज़्यादा कुछ डिटेल में ना जाते हुए केवल जो पॉइंट्स हैं जो मुझे ऐसा लगा कि डिस्कशन के लिए हो सकते हैं, कुछ उसमें रिकमेंडेटरी नेचर के हैं। एक तो मुझे ये लगा कि इन्होंने, मैडम स्वागता ने बहुत अच्छी बात कही कि शौर्या दीदी के साथ शौर्या भैया, तो शौर्या भैया किस तरह के लोगों के लिए रहे, क्या रहे, उसके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा सकता है कि किस तरह के बच्चों को, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी जो हैं, उनके लिए हम अगर एक शुरू से ही एक शौर्या भैया वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है, उनको बच्चे मेल को मेल के साथ, बॉय को बॉय के साथ कंफर्टेबल रहे, ऐसा कुछ थॉट कैसा दिया जा सकता है, थोड़ा सा उस पर एक प्लानिंग करने की ज़रूरत है। एक बहुत अच्छी इन्होंने सजेशन दिया कि हिंदी में ये वर्ड्स नहीं है, हम लोग वो जो अपने जो बचपन से परिवार में या स्कूल्स में या हमने आसपास अपने जो समाज में जो वर्ड्स सुने हैं जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए, वो हम रिपीट करते हैं, वो हमारे प्रेजुडिसेस हैं, बायस हैं, या हम ये कह लें कि वो हमारा एक नेचुरल एक बन गया था। वो जब ये इंग्लिश में तो आ गया है उसका एक पूरा एक सेट पैटर्न पे, हिंदी में तो क्या हम हिंदी ग्रंथ अकादमी को, अवस्थी जी हैं यहाँ पर, तो क्या हिंदी ग्रंथ अकादमी के साथ एक कोऑर्डिनेशन करके इन तरह के, इस तरह के वर्ड्स के लिए मध्य प्रदेश में वो आगे दूसरे हिंदी स्टेट्स के लिए भी एक रोल मॉडल हो जाएगा, तो वो बनाया जा सकता है क्या। एक आपने अवस्थी जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो साइको सोशल एक्सपर्ट्स और इंटरप्रेटर्स, इनकी कमी है, तो मुझे लगता है कि साइको सोशल एक्सपर्ट्स की जो बात है वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि कल के मैंने उसमें कहा था कि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़े वे में इस कमिंग टाइम में आ रही है, एआई और क्लाइमेट चेंज के अलावा, और मेंटल हेल्थ को अब शायद हम पहली बार थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज़ मेंटल हेल्थ थोड़ा सा हम उसको समझते थे कि कैसे साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, या एक वो थोड़ा सा टैबू वाला सब्जेक्ट था। तो साइको सोशल जो एक्सपर्ट्स हैं, एक प्रॉब्लम जो भी आती कई बार इंटर स्टेट जो CICL है या इंटर स्टेट, जैसे सपोज़ छत्तीसगढ़ से एक बच्चा यहाँ आया या तेलंगाना से एक बच्चा यहाँ सपोज़ CICL बन के आया, या चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, कहीं बैगिंग के लिए आ गया, कहीं चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में आ गया, कहीं कुछ और दूसरे उसमें आया, तो लैंग्वेज बैरियर तो है ही, दूसरे उसके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं या जो उस सोसाइटी में रहा है वहाँ के भी जो डिफरेंसेस हैं, उसको वो करने के लिए, ओवरकम करने के लिए मुझे लगता है कि साइको सोशल एक्सपर्ट्स की एक पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार होना चाहिए, और वो या तो जैसे निम्हांस है या जैसे NFSU ने अभी हमारे यहाँ शौर्या दीदी के ट्रेनिंग जो है वो NFSU गांधीनगर में हुई है, और मैडम शुभम जो आई हैं उन्होंने उसको कोऑर्डिनेट करा था, तो शी हैज़ दैट एक्सपीरियंस। तो इस तरह से हम पूरे इंडिया के, हालांकि इंडिया के लिए अभी कहना मुश्किल है, लेकिन कम से कम स्टेट के लिए और आगे के लिए, ताकि इंटर स्टेट जो CICLs या चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है या चाइल्ड सर्वाइवर्स हैं सेक्सुअल वायलेंस के, उनको हम एक ट्रेनिंग करा जाए। और चौथी चीज़, पिछले बार भी डिस्कशन में हुआ था, वहाँ कुछ संयोग था कि ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी मैंने कही थी कि एक स्टैट्यूटरी ग्रिड और डेटा ग्रिड बनना चाहिए। कल अस्थाना जी ने एक बहुत अच्छी बातें बताई, कई एनोमलीज की इस लॉ में तो अमेंडमेंट है, इस लॉ में नहीं है, बोथ स्टेयर ईच अदर, उसको रिकंसाइल करने के लिए एक पूरा स्टैट्यूटरी ग्रिड बनना चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस का अगर पूरा फील्ड है तो उसमें जितने भी रिलेटेड लॉज हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉक्सको, चिल्ड्रंस कोर्ट और
मेंटल हेल्थ, ये सारे जितने जो आपस में रिलेटेड स्टैट्यूट्स हैं, आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता जो अब आया है उसके भी कई ओवरलैपिंग होते हैं। तो ये सारे जो एक्ट्स हैं इनको साथ में रखा जाए, साथ में पढ़ा जाए और एक पूरी ग्रिड बनाई जाए। जैसे बिजली या पानी की ग्रिड बनती है, वो स्टैट्यूटरी एक ग्रिड बने तो शायद उससे ये जो एनोमलीज़ हैं आपस में वो दूर हो सकती हैं। ये कुछ सजेशंस हैं जो गवर्नमेंट अपने लेवल पे और ऑफिसर्स जो हैं कंसर्न, मैडम भी कहीं रखें उसको। और अगर कोई डिस्कशन का पॉइंट हो तो आप बताएं। प्रॉब्लम है कि एक्सपर्ट्स नहीं हैं। इनफैक्ट मध्य प्रदेश की अगर बात करें सर, तो हम सिर्फ साइकोलॉजिस्ट या उसकी बात करते हैं। या तो मेरा ये कहना है कि डेटा अवेलेबल है। जैसे मैं बताऊं कि नेशनल ट्रस्ट की 58 ऑर्गेनाइजेशन मध्य प्रदेश में काम करती है, जहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिलेज के बच्चे हैं उनके एक्सपर्ट्स हैं, लाइक स्पेशल एजुकेटर, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, वो भी इस काम में मदद कर सकते हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की DDRS एक स्कीम है जो स्पेशल स्कूल चलाती है, उसके 20 स्कूल्स मध्य प्रदेश में हैं। इसी प्रकार से राज्य सरकार के कल डेटा हमने देखे थे, 38 उनके सेंटर्स हैं, वहाँ पे ये सारे एक्सपर्ट्स, रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल वहाँ मौजूद है। सेकेंडली, इस पूरे रिहैब प्रोफेशनल्स के लिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे पूरा डेटा अवेलेबल है कि किस स्टेट में कौन बंदा रजिस्टर्ड है। यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ दैट वेबसाइट बिकॉज इट इज़ अवेलेबल। सिमिलरली अभी NIMHR जो सीहोर में है, वहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट्स वहाँ भी अवेलेबल है। उनकी खुद की जो हेल्पलाइन की बात कर रहे हैं, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने किरण हेल्पलाइन करके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए एक किरण हेल्पलाइन है उनका, उसका भी हम हेल्प ले सकते हैं। सो रिसोर्सेज आर अवेलेबल, एक्चुअली वी आर नॉट अवेयर। तो इन चीज़ों की अगर हेल्प लें, जैसा सर ने कहा कि इंडिया लेवल पे पूरा ऐसा बने, तो RCI का डेटा अवेलेबल है। 600 ऑर्गेनाइजेशन DDRS की पूरे इंडिया में है, नेशनल ट्रस्ट की 600 ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है। साथ में मध्य प्रदेश में RCI के जो कोर्सेज चलाते हैं, जो ये टीचर्स डेवलप करते हैं, दीज आर मोर देन 30 ऑर्गेनाइजेशंस। तो वहाँ तो पूरा आपको बल्क मिलेगा। तो आई थिंक वी कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट। अवस्थी जी ने नोट कर लिया है, सर। तो उसको थोड़ा कोऑर्डिनेट करेंगे। थैंक यू। एक आवश्यक सूचना है, जो अगले सेशन का ग्रुप वर्क है उसमें से एक ग्रुप है हमारा सुदृढ़ ग्रुप, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ का। उस ग्रुप के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वो फर्स्ट फ्लोर के VC पे मूव कर जाएं। आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट करुणा एंड अर्गा टू प्लीज़ एस्कॉर्ट द मेंबर्स। आई रिपीट, सुदृढ़ ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ का ग्रुप जो है, वो प्लीज़ ग्रुप वर्क के लिए पहले से मूव कर जाएं। यस सर, प्लीज़। मैं ओंकार सिंह, सदस्य SCPCR। मेरा एक सवाल है, जो विधि विरुद्ध बच्चे रहते हैं, आगे चल कर के उनकी नियुक्तियां जो हो रही हैं, उन नियुक्तियों में पुलिस सत्यापन जो होता है, उनमें पुलिस की तरफ से उन प्रकरणों का उल्लेख करके जो JJB उनके विरुद्ध चल रहे थे, पुलिस सत्यापन में भेजा जा रहा है। इस कारण से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। आयोग के पास में इस प्रकार के आवेदन हैं, मगर वो बच्चे 18 से ऊपर के हैं। नहीं, वो बड़ा गलत है। वो गलत है। पिछले साल भी ये कॉन्फ्रेंस में ये बात आई थी और वो शायद मिस्टेक रिपीट हो रही है। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ एक पत्र शासन को भेजा जाए उन बच्चों को, है ना, वो नोट करा दें वो। जी। दूसरा सवाल ये है, बहुत सारे स्कूलों में हमने निरीक्षण किया है, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए जो फैसिलिटी मिलना चाहिए स्कूल में, जैसे रैंप हो, इस तरह की सुविधाएं नहीं है। जैसे प्रश्न आया था कि वो स्कूल एडमिशन लेने से मना करते हैं, मगर सुविधाएं भी वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। नियम के अनुसार उन स्कूलों में रैंप होना चाहिए, बाकी सब सुविधाएं होना चाहिए।
ऐसा भी एक निर्देश यहाँ से जाए। वो हाँ भाई। ओंकार सिंह सर, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। रोहित जी कुछ बोलना चाहते हैं, पहले आप बोल लें। नमस्कार। दो मुद्दे मेरे जहन में आए अभी। एक तो जहाँ डेटा की बात हो रही थी, तो डेटा हमारे पास में जो है वो अलग अलग तरह का डेटा है। एक सेंसस का डेटा है, एक एजुकेशन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का बेस लाइन सर्वे है, फिर आप लोग विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में आंगनबाड़ी के बच्चों का डेटा होगा, फिर उसके अलावा NSO का डेटा भी कई बार लोग यूज़ कर लेते हैं, फिर समग्र ID पोर्टल का डेटा है, फिर जो है हम लोग UDID कार्ड बनाते हैं वो डेटा अलग हो जाता है, और फिर जो कैंप वगैरह से जहाँ से भी चीज़ें आती, आधार कार्ड, मैंने ये सारे डेटा, इतने सारे डेटास को हम लोग क्यों नहीं हम एक ऐसा डेटा बनाएं जो जिसको सब एक्सेस कर सकें, और फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुँचें कहीं पर। तो वो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जिसको हमको देखना पड़ेगा, नहीं तो वरना क्या होता है कि डेटा का ही कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है हर जगह पे। दूसरी बात, जब हम लोग रिसोर्सेज की बात करते हैं, अभी पंकज जी ने बताया कि रिसोर्सेज हैं हमारे पास अवेलेबल। दूसरी बात, हमारे पास में हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग खोजते रहते हैं कि हम लोग कौन से स्किल बेस्ड कोर्सेज चलाना शुरू करें जिससे बच्चों को नौकरी मिल पाए। तो अपने मन से अगर सारे डिपार्टमेंट्स का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ में वो हो, एक कोलैबोरेशन हो, और हमको ये बताया जाए स्कूल कॉलेजेस को और डिपार्टमेंट को कि हमको ये और यूनिवर्सिटीज़ को कि ये कोर्सेज चाहिए और हमको इन फील्ड्स में लोग चाहिए अगले 25 साल में, तो शायद हम लोग बहुत सारे चीज़ें ऐसे कर सकते हैं जो कि वाकई में जिनकी ज़रूरत है, और जो चीज़ नहीं चाहिए उनको हम अलग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फिर तीसरी बात ये कि जैसे कि जब हम जो लॉ इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे लॉ की पढ़ाई होती है जिन कॉलेजेस में, वहाँ पर हम मॉड्यूल्स डेवलप कर सकते हैं कि वहीं से बच्चे पढ़ के आएँ कि हमको चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ जब केस आएंगे तो क्या दिक्कतें आएंगी, हम लोग उसको एड्रेस करें, या अगर जुवेनाइल जस्टिस वाले केसेस आएंगे तो हमको क्या दिक्कतें आएंगी, तो हम उस तरह की ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को हम वहीं इंडक्ट कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि आपस में डिपार्टमेंट जब डेटा लोग तब मिलेंगे जब डिपार्टमेंट्स खुद निकल के बाहर आएंगे, चाहे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे महिला बाल विकास विभाग हो, कि हमको इस फील्ड में काम करना है। मेरे ख्याल से आज 1984-85 से शायद महिला बाल विकास विभाग काम कर रहा है, और बच्चे तब से ही हैं। अब हम लोग आज इस बार पहली बार सुन रहे हैं कि हम लोग डिसेबल्ड बच्चों के साथ में भी उनकी बात होना शुरू हुई है, क्योंकि कोर्ट ने संज्ञान लिया या इस तरह से। तो जब हम ऐसे जब लोगों विभागों को भी निकल के आके और ढूंढना पड़ेगा कि कौन है जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, तभी हम लोग इस सब चीज़ों को आगे और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना पड़ेगा सारे डिपार्टमेंट्स का। सामाजिक न्याय, महिला बाल विकास, एजुकेशन, सब बच्चों से डील कर रहे हैं, तो आपस में मिल के काम करेंगे तो बहुत सारे काम आराम से हो जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। रोहित जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? माननीय सर, मैं डॉक्टर रामनरेश पटेल। जहाँ तक अपने एक्सपर्ट की बात है, तो जितने भी बीएड कॉलेजेस हैं उसमें कुछ वर्षों से सिलेबस में स्पेशल एजुकेशन को इंक्लूड किया गया है। स्पेशल पेपर होता है उसमें, और एमएड के कोर्स में भी है और बीएड के कोर्स में भी है। तो जैसा कि त्रिवेदी जी भी कह रहे थे कि वहाँ भी मॉडल डेवलप किया जाए तो बहुत जल्दी कोऑर्डिनेशन बन सकता है। और ये पेपर में समावेशी शिक्षा, ये पेपर का नाम भी है, और विशेष शिक्षा ये एमएड के कोर्स में ऑलरेडी है सर। दूसरा मेरा सर सुझाव ये था
कि जो जे एक्ट के अंतर्गत जो और भी ऐसे डिसेबिलिटी जो चिल्ड्रंस जाते हैं, चिल्ड्रन विशेषकर जैसे कि HI है, आपका विजुअली इम्पेयर्ड है, इनका सर साइन लैंग्वेज से रिलेटेड किशोर बाल गृह में, चाहे वो बालिका गृह हो या इनसे मेल से संबंधित हो, वहाँ ब्रेल लिपि से संबंधित एक्सपर्ट होना चाहिए। ब्रेल लिपि में ज़्यादा समय नहीं लगता सर सीखने में, ना कोई बाहर जाने की आवश्यकता है। ये 15-20 दिन में मैं समझता हूँ लगन से अगर कोई सीखा जाए तो ब्रेल लिपि को सीखा जा सकता है। तो ये मेरा सुझाव था। तीसरा ये सर कि जो थाने वगैरह होते हैं जहाँ हम FIR दर्ज कराने जाते हैं, वहाँ भी ब्रेल लिपि से रिलेटेड व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि ब्रेल लिपि को विश्व स्तर की मान्यता प्राप्त है, लिपि मानता है, तो थाने में भी ब्रेल लिपि से FIR दर्ज होना चाहिए अगर कोई ब्रेल लिपि से कोई FIR कराने जाता था। तो ये मेरा सुझाव सर, थैंक यू सर। अभिषेक जी बहुत धन्यवाद, आपने जो बात कही वो बहुत अच्छी है कि डॉक्टर रामनरेश पटेल सर, सॉरी रामनरेश पटेल जी, हाँ मैं बता रहा हूँ सर। पटेल साहब जो आपने बात कही, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे। यहाँ सामाजिक न्याय विभाग के डिप्टी डायरेक्टर भी बैठे हैं, तो सर उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि वो ये अनुशंसा यदि नोट कर लें जो रामनरेश पटेल जी ने कही, और हम कोशिश करेंगे कि JJC के माध्यम से जितने भी विभाग हैं, जो स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेंट हैं, उन सबको ये निर्देश चला जाए कि वो ब्रेल लिपि की प्रारंभिक जानकारी या शिक्षा जरूर ले लें, तो उसके बारे में कोई ट्रेनिंग या इस तरह का वो करा सकते हैं। दूसरा, रोहित जी ने जो बात कही कि 1986 से या 1989 से महिला बाल विकास विभाग काम कर रहा है। हम अभी तक सभी बच्चों को एक समान समझते थे, हमको बिल्कुल पता नहीं था कि जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको अलग देखना चाहिए। निश्चित तौर पे हमारी गलती है, और मैंने पहले ही कहा एक्सेप्ट करने में कुछ भी वो नहीं है मुझे। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले MIS महीनों में MIS में इन चीज़ों को शामिल किया जाए, तो हम शामिल कर लेंगे। ओंकार सिंह सर जो कह रहे थे, माननीय सदस्य हैं बाल आयोग के, उनने जो हमें कहा कि सरकारी बिल्डिंग्स में और आंगनवाड़ी केंद्रों में रैंप होना चाहिए। तो सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी यहाँ बैठे होंगे, दिव्यांगजन के अधिकारी, उनके माध्यम से जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि जितनी भी नई बिल्डिंग्स हैं उनमें रैंप बनाने के लिए निर्देश या उनके संबंधित जो भी सुविधाएं होना चाहिए वो बनाने के निर्देश राज्य शासन ने दिए हुए हैं। भारत सरकार की तरफ से भी है, यहाँ से भी दिया हुआ है। पालन कराना अब जो अधिकारी हैं उन सबका काम है कि ये पालन होना चाहिए। जी नमस्कार सर। जी 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 हाँ, पुलिस सत्यापन के संबंध में जहाँ तक आपको जानकारी दूं कि पिछले JJC में भी ये बात आई थी, सर ने भी बताया, तो उस समय भी ये निर्देश जारी हुए थे। एक बार फिर से हम लोग उसको देख लेंगे कि उसको फिर से रिट्रेट हो जाए, वो ऑर्डर चला जाए फिर से। जी सर, सभी के लिए निर्देश हैं सर ऑलरेडी। पुरानी बिल्डिंग्स के लिए जरूर है कि अब पुरानी बिल्डिंग में भी बनवा लिया जाए। जी नमस्कार सर, मेरा नाम अरुणिमा चतुर्वेदी है, स्पेशल एजुकेटर गवर्नमेंट मेंटल रिटायर्ड चिल्ड्रंस होम से हूँ। मैं अपना 2 मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये मैं बोलूँगी कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। कल से हमारी एक ही चर्चा हो रही है कि हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर और साथ में साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। 92 से लेके आज 2024 तक हमारे साथ आज कम से कम 10 से 12,000 15,000 तक जो है स्पेशल एजुकेटर्स, इंटरप्रेटर और साइकोलॉजिस्ट जो है अपनी ट्रेनिंग पूर्णतः प्राप्त है और इतने सालों का एक्सपीरियंस है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने सालों से काम तो कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इस फील्ड से अलग क्यों हो रहे हैं? आज हमको ये कमी क्यों महसूस हो रही है? उसका एक ही कारण है कि हमारे MP में पर्याप्त सैलरी नहीं दी जा रही है। हमारे खुद सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट में हम लोग 80 लोग जो हैं वो नियुक्त थे, लेकिन आज की डेट में केवल 26 लोग बचे हैं। कारण सिर्फ यही कि सैलरी जो है वो बहुत कम है। इसके कारण धीरे धीरे जो लोग हैं इस फील्ड से अलग होते जा रहे हैं। दूसरा मुद्दा ये था जी, जैसा कि सर ने बताया कि जो
जो पीड़िता बच्ची रहती है, 376 के जो केसेस रहते हैं उसमें जो है पीड़िता बच्ची का अबॉर्शन हो जाता है, लॉन्ग पीरियड हो जाता है, उसका टाइम, बच्चे को जजमेंट नहीं मिलता है। इसके संबंध में मैं बताना चाहूँगी कि कटनी के एक केस में इंटरप्रिटेशन के लिए मैं गई थी, तो उस पीड़िता बच्ची को मैं 6 महीने पहले दे के गई थी। वो बच्ची बहुत स्वस्थ थी, बाकायदा अपने बारे में सब कुछ बता रही थी। फिर उसके बाद कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि इस बच्ची का जो है अबॉर्शन हुआ जाए, तो अबॉर्शन जो है उसमें 6 महीना उस बच्ची को लग गया। उसके बाद जब मैं सेकंड टाइम कोर्ट में उस बच्ची के लिए गई थी इंटरप्रिटेशन करने, तो वो बच्ची कुछ भी नहीं बता पाई, क्योंकि 6 महीने के पीरियड में जो गैप हो गया उसके कारण वो अपना पास्ट पूरा भूल गई कि मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। उसको इतना भर याद है कि मेरे अबॉर्शन हुआ, पेट कटा और उसमें से बच्चा निकला, बच्चा उन लोग ने बॉटल में रखा। तो मेरा ये कोर्ट से ये विशेष अनुरोध है कि ऐसे बच्चों के साथ जो है अन्याय ना होए, और स्पेशली पुलिस जो है इसका इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से कर पाए ताकि इन बच्चों को न्याय मिल पाए। धन्यवाद। ये बाल आयोग भी इस दिशा में कर सकता है, सैलरी वाले पॉइंट पे थोड़ा आप रिकमेंड कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, और भाई यहाँ से कमेटी भेजे, ये तो हम लोग भेजेंगे, लेकिन चूंकि ये सैलरी और जो पे स्केल वाला मामला है ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है, उनको डिसाइड करना है, तो थोड़ा आप लोग भी इस चीज़ में इनिशिएटिव लीजिए, क्योंकि आप भी एक ऐसी रिस्पॉन्सिबल बॉडी हैं। और कमेटी भेजेगी, गवर्नमेंट कैसे कर रही है ये बताएंगे। जहाँ तक सर आप प्लीज़। देखिए सर, इसमें जैसा आपने कहा कि पे स्केल बढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इसमें हमारे ICPS स्कीम भी बहुत समय से इस दुविधा में पड़ी हुई थी। लगातार संवाद के साथ और शासन और विभाग और आयोग सभी का लगातार संवाद चल रहा था, तो इस बार हम उन्हें संविदा नीति का फ़ायदा करके उनका मानदेय भी बढ़ा है और सुविधाएं हुई हैं। अब ये विषय संज्ञान में आया है, हम लोग शासन और हम लोग मिलकर एक साथ प्रयास करेंगे और इस चीज़ को भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जैसा अमिताभ जी ने कहा कि स्वीकार करने में कोई गलती नहीं है, समस्याएं आ रही हैं, जानकारी में आ रही हैं, तो उसको बेहतर हम करेंगे। एक मैं बिंदु में जोड़ना चाहूँगा साथ में, उसी के लिए मैं पहले से भी खड़ा हो रहा था। जैसे MIS में हमारे डाटे की बहुत सारी बात हुई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का एक पोर्टल है, गो होम पोर्टल, अमिताभ जी उसको देखते हैं, उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जानकारी है। जैसा कि आपने कहा था कि इंटर स्टेट कोई बच्चा आ जाता है तो लैंग्वेज बैरियर वगैरह, उसमें एक्सपर्ट्स, हर स्टेट के एक्सपर्ट्स भी हैं, और बच्चे को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाने के लिए सारी सुविधाओं को अवेलेबल कराने के लिए वो पोर्टल बहुत अच्छे से काम करता है, और उसकी लगातार समीक्षा में अमिताभ जी और हम लोग और राष्ट्रीय बाल आयोग रेगुलरली काम कर रहे हैं। तो सकारात्मक पहलू के साथ बहुत सारे एक्सपर्ट उसमें पहले से इनरोल्ड हैं, जिनका प्रयोग हम लगातार कर सकते हैं। आप पुलिस को जरूर इन्वॉल्व करिए, क्योंकि पहला इंटरेक्शन उसका जो बच्चे का है वो पुलिस से होता है, फिर JJ बोर्ड से होता है। जो जानकारी दी निश्चित तौर पे हमारे काम आएगी। जो मैडम की बात है, आपकी भी बात है कि सैलरी का जहाँ तक मैं आपको सबको बता दूं कि जो मिशन वात्सल्य के रेगुलर एम्प्लॉय हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, उनका लास्ट दिसंबर में उनकी सैलरी में एक हाइक हुआ है और उनको पर्याप्त सैलरी अभी मिल रही है। जो बाहर से जो लोग काम करते हैं, काउंसलर्स जो बाहर से एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं, तो उनको 500 रुपीज़ पर डे का रिम्यूनरेशन या मानदेय हम देते हैं। मैंने पहले ही कहा, मैंने पहले ही एक्सेप्ट किया कि मुझे लगता है कि वो कम है, तो उस पे हम लोग एक बार विचार कर लेंगे। पांडे जी साहब ने भी कहा, बाकी लोग ने भी कहा, तो उसको हम लोग ठीक करने की कोशिश कर लेंगे। थैंक यू सो मच। सर मेरी वो जो कोर्स है, जो बताया मैडम जी ने, जी, अगर वो उस कोर्स मैंने को कोऑर्डिनेट कर सकें हम, तो हमारे यहाँ भी मध्य प्रदेश में भी स्टेट रिसोर्स पर्सन ऐसे तैयार हो सकते हैं सर। और हम NFSC को थोड़ा सा और ज़्यादा यूज़ उनकी, जो क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं, डेफिनेटली डिसाइड यूनिवर्सिटी करेंगे सर, वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो आपको अगर आप उनको कोई टास्क देंगे तो वो उसके प्रोजेक्ट तैयार भी कर सकते हैं सर। तो हम उनकी सर्विसेज अवेल करें। सर मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं कि हम लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि नेशनल फॉरेंसिक स्टेट यूनिवर्सिटी नाम की कोई चीज़ है, मुझे नहीं मालूम था सही में। तो ये तो आपने दिखाया, और शुभम जी का जो कल भाषण सुना, तो मतलब कल जो संवाद सुना, तो उससे बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग के जाले हट गए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। भोपाल में भी आ गई है यूनिवर्सिटी का कॉलेज कैंपस, जो स्टेट कैंपस है भोपाल में भी आ रहा है, धीरे धीरे साल 1.5 साल में पूरा फुली कमीशनड हो जाएगा वो, तो हम भोपाल से फिर और उस सर्विसेज अवेल कर सकेंगे। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपने पुलिस वेरिफिकेशन की बात कही और विमर्श के रिजोल्यूशन पे आज तक एक्ट अपॉन नहीं हुआ, ये हम लोग के लिए कंसर्न है कि उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन पे फिर वही सब,
पिछली बार भी ये इशू मैंने उठाया था कि हाई कोर्ट में जब बेल एप्लीकेशंस आती हैं तो पुराने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स आते हैं, वो उस समय के पीरियड के हैं जब वो 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, और वो लॉन्ग लिस्ट देख करके हम अगर ना ध्यान दें तो यानी हम उसके पुराने कैरियर क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को देख करके बेल एप्लीकेशंस रिजेक्ट करने के लिए प्रोवोक होते हैं। ये प्रॉब्लम अभी अमिताभ जी ने भी कही कि वो प्रोबेशनर ऑफिसर का रिएक्शन ये है कि इतने सारे केसेस बेल कैसे दे दें। तो वो केसेस कौन से हैं जो कहीं पिक्चर में नहीं होने चाहिए थे, पूरे कैनवास से वो हट जाने थे, लेकिन उनके बेसिस पे हम उनको बेल डिनाई करते हैं। तो ये जब आप इस चीज़ को उठाएं कि विमर्श के पिछले रेजोल्यूशन को, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको भी साथ में लिया जाए कि वो भी रेजोल्यूशन का हिस्सा रहा होगा आई बिलीव, क्योंकि हमारे उसमें सेशन में वो उठा था। वो बिल्कुल वो आपका सही वैलिड पॉइंट है। पिछले साल भी ये बात हुई, आपने उठाया था, डिस्कशन हुआ था काफ़ी उस बात पे, लेकिन शायद एक्ट अपॉन सब्जेक्टिव है, कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ शायद नहीं कर रहे हैं, उनको आइडिया नहीं, तो ना कर वो अनिल जी और समरेश जी आप लोग इनको डीजी को डायरेक्ट और होम सेक्रेटरी को इस बारे में करें कि ताकि वो एक प्रॉपर सर्कुलर निकालें इस संबंध में, ताकि वो हर नीचे तक वो मैसेज आए। दीजिए मत लो। नहीं ये बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये आपका जो एक्स्ट्रा माइल जा रहे हैं, एक्स्ट्रा आर आप कर रहे हैं, वो आपकी जो सेंसिटिविटी दिखाता है। और मेरा हमेशा ये कहना है कि आप सब लोग जो यहाँ जुडिशल फैमिली से हैं वो शायद ये सब कोर्ट हमेशा सुनते होंगे। मैं फिर से रिपीट करूँगा ताकि जो नए लोग हैं उनके दिमाग में ये इंस्टिल हो कि एवरी फाइल FILE, एवरी फाइल विथ सेम अल्फ़ाबेट्स कंटेंट्स ए लाइफ, LIFE। फाइल का और लाइफ के अल्फ़ाबेट सेम है। अगर हम फाइल को लाइफ नहीं समझेंगे तो हमेशा स्टैटिस्टिक्स या डिस्पोजल में जाएंगे, और अगर हम फाइल को अगर लाइफ समझ लेंगे तो फिर हम उस बच्चे के साथ जस्टिस करेंगे या उस इंसान के साथ जस्टिस करेंगे जिसकी फ़ाइल आपके सामने है। तो ये जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, हमेशा कोई भी काम करें तो हमेशा ध्यान रखें कि वो जो फाइल आपके सामने आई है वो एक लाइफ है। आपके लिए पेपर्स हो सकता है, उस व्यक्ति का वो पूरा लाइफ है जो आपके पेपर पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। Thank you. Priya ma'am, you wanted to say something? गुड मॉर्निंग सर। मैं एक चीज़ जो कल से डिस्कस हो रहा था चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के सुविधाओं के लिए कि रैम की कमी है। एक मेजर कमी जो मुझे नज़र आती है, जो हम लोगों ने भी सर्वे किया था और कुछ लायंस क्लब और रोटरी क्लब वालों के साथ भी कुछ हमारे टाइप्स थे, तो ये पता चला कि हाइजीन से रिलेटेड बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। हम रैम्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है। नॉर्मल फीमेल के लिए भी, जब बच्चों गर्ल चाइल्ड हैं उनके लिए भी जब टॉयलेट्स की इतनी कमी है, तो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए टॉयलेट जो है वो स्कूल्स में प्रोविज़न ही नहीं है वहाँ पे। इसी तरीके से जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है गर्ल्स के साथ हाइजीन की, कि सैनिटरी पैड जो रहता है या जब उनके इस तरह के जब समय रहता है उस समय वो लोग स्कूल आना बंद कर देती हैं। तो मेजर जो एक सर्वे हुआ था उसमें हमने ये पाया था कि वो गर्ल चाइल्ड जो हैं वो अगर स्कूल कम आती हैं तो उसके जो रीज़न है उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न हाइजीन का आता है कि दे आर नॉट हैविंग अ गुड टॉयलेट्स एज वेल, दे आर नॉट हैविंग एनी प्रोविजन रिलेटेड टू सैनिटरी पैड्स और नैपकिन्स, सो दैट्स वाई दे आर रियली हैविंग दिस थिंग। तो इसलिए इस तरीके का अगर प्रोविज़न अगर नॉर्मल चाइल्ड के साथ है तो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के साथ अगर ये कर दें तो अच्छा रहेगा। Thank you. And this is the last we are taking. सर एक हम लोग कल से एक्सेसिबिलिटी की बात सुन रहे हैं, लेकिन वो एक्सेसिबिलिटी वाला ये होता है कि रैंप बना दें और बहुत सारी चीज़ें होती है, और रैंप भी सर ऐसे बनते हैं जिसमें आम आदमी हम भी नहीं जा सकते, वो हमको भी पकड़ना पड़ेगा। और तो टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट्स में व्हीलचेयर नहीं घुसती है। भोपाल में एक भी टॉयलेट जो पब्लिक टॉयलेट या जबलपुर में भी होगा
जिसमें अपने आप व्हीलचेयर से चला जाए डिसेबल्ड, सवाल ही नहीं उठता। और अब जब पहुंचते हैं उसके पास, वो कहते हैं ले आओ हम डाल देंगे अंदर। अरे ये थोड़ी सामान थोड़ी है कि डाल देंगे। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं सर एक्सेसिबिलिटी को लेके, कि ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से ऑर्डर आया है कि सारे स्कूल्स को बाधा रहित कर दें, रैम बना दें। तो अच्छी खासी ऐसी सीढ़ियाँ थी, बस वहीं से रैम बना दिया मिस्त्री बाहर उसके लिए यानी एक डिसेबिलिटी इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग से आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सब सब्जेक्ट हो सकता है सिविल का, कि डिसेबिलिटी इंजीनियरिंग की उसमें क्या क्या चीज़ें उसको फॉर्मुलेट करी जा सकती, केवल रैंप या हैंडल्स नहीं, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज़ करस्पॉन्डिंगली इंजीनियरिंग बी फिटिंग देयर फैसिलिटीज़। अब एक साइड सर मेरा गाइडलाइंस ऑलरेडी हैं, पर वो गाइडलाइंस के नॉर्म को कोई फॉलो नहीं करता है सर। हैं गाइडलाइंस, जब भी जाते हैं किसी में तो एकेडमी में होती वर्कशॉप सर, उस पे भी तो एक साइड रेलिंग दे देंगे, एक साइड नहीं देंगे। उसको अब मेरा हाथ नहीं, टूटा है, इधर का काम नहीं करता है। उस गाइडलाइन को एक डिसेबिलिटी इंजीनियरिंग करके उसको आप कुछ थोड़ा सा, ताकि वो जो हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं बिल्डिंग्स के, उसका उसमें एक वो नॉर्म जोड़ दिया जाए कि इस गाइडलाइन को फॉलो किया जाए। और सर ये जो नाम रोज टर्मिनोलॉजी चेंज होती है। हम तो छोटे शहर में रहते हैं, हम जब दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर बॉम्बे जाते हैं, तो वहाँ वो मैडम जो मिलती है, नो 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 ये नहीं बोलना, ये बुरा लग जाएगा, ये बुरा लग जाएगा। लेकिन जब गाँव में जाते हैं सर, तो एक बार हम लोग सेंसस के टाइम गए सर, तो हमारे पास हम ट्रेनिंग कर ही रहे थे, लेकिन दिल्ली से आ गया कि नहीं ये 5 ऑर्गेनाइजेशन ये देखेंगे, ये इतने स्टेट देखेंगे, ये इतना, ये इतना। तो वहाँ से हमारे पास भी आ गया कि आप नहीं करोगे, ये लोग करेंगे। मैंने कहा सर ये भी हमको ही पकड़ेंगे आके कि तुम हमारा कर दो। हम जब पहुँचे सर गाँव में बस्तर के, तो इन्होंने बोला कि साहब वो इनको पता करना था कितने ब्लाइंड हैं वहाँ पे, लेकिन वो लेडी को बोलने में वो आ रहा था कि कैसे। उन्होंने कहा कि गाँव में कितने लोगों को आंखों में दिक्कत है, आधा गाँव खड़ा हो गया सर। तो कि हमारे भी है, हमारे भी है, ऐसे करके। फिर कुछ उन्होंने बोला नहीं 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 ऐसे वाले जिनको, तो चश्मे वाले आ गए सर। फिर वो सरपंच आए मेरे पास कि साहब इनको चाहिए क्या। मैंने कहा इनको चाहिए कितने अंधे हैं गाँव में। अरे यार एक कल्लू का है और एक इसका है। और सर एक इन्होंने बीच में कर दिया था निशक्त इनको। तो हम लोग विकलांग एक था कि सब लोग जानते हैं, गाँवों तक जानते हैं। अब कई आ गए सर वो कि साहब वो शादी रुक गई हमारी, तो उनको पता चल गया हम निशक्त हो गए। तो इसका या तो वो शक्तिहीन हो गए, विकलांग होते तो एक उससे और वो निशक्त। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये। अब वो उसकी जो अगर हिंदी ग्रंथ, अगर एक क्वेश्चन फिर तो ये आ गया कि हिंदी ग्रंथ अकादमी में अगर वो पूरे बन गए वर्ड, वो पूरा खराब तो कर नीचे देंगे तक सर। जाना चाहिए, फिर नहीं पहुंचते सर। और तब तक तो दूसरे, क्योंकि उनके पास काम वही रहता है कुछ ना कुछ नया करने का, फिर बदल देंगे वो लोग। जैसे कोर्स चेंज करते हैं हम लोग, कोर्स भी रिकॉर्ड करते हैं ब्लाइंड बच्चों के लिए ऑडियो। तो जब तक हम पूरा करते हैं फिर ये लोग एक्सपर्ट लोग बदल देते हैं, फिर हम वही खड़े हो जाते हैं अगले उसमें। तो ये भी ध्यान रखें सर कि मतलब बाकी लोग को भी दिक्कत होती है चीज़ों की। एक्सपर्ट जो पीछे बैठे हुए हैं अस्थाना जी वगैरह, यही सब इसका विचार निकालें, कोई समाधान निकालेंगे, क्योंकि यही लोग बार बार चेंज करते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि जब कोर्स बनाते हैं तो उन्होंने कहा कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, तो किताबें जो होंगी वो पूरी पिक्चर होंगी फर्स्ट से लेके 3rd तक का। अब ब्लाइंड बच्चों के लिए उसके लिए ऑल्टरनेटिव किट्स बनाने चाहिए, या हम लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ इस तरीका होना चाहिए जिससे कि हम उनको वो बात कॉन्सेप्ट समझा पाएँ। तो लर्निंग मटेरियल को एक्सेसिबल फॉर्मेट में बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में बहुत हमारे पास इतना सुविधा उपलब्ध है कि अब ब्लाइंड बच्चा चाहे तो कंप्यूटर का यूज़ करके, स्क्रीन रीडर का यूज़ करके पूरा काम अपने आप कर सकता है। इवन ब्रेल की ज़रूरत भी नहीं है अब तो। अगर हम बच्चे को क्लास 1 में ही कंप्यूटर पकड़ा दें या लैपटॉप पकड़ा दें और सिखाएं उसको, तो वो अपना आंसर अपने आप टाइप करके उसका प्रिंट आउट निकाल के टीचर को होमवर्क दिखा सकता है, एग्ज़ाम भी दे सकता है। थैंक यू। आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस। एक बात कहना चाह रहा था मैं कि अभी बात हुई टॉयलेट्स बनाने की और निर्देश जारी कराने की, तो मेरा जेजेसी से रिक्वेस्ट था कि जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन वाले डिपार्टमेंट हैं, PWD, RES या PIU है या पुलिस हाउसिंग है या मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड है, यदि उनको निर्देश चले जाएं कि जो भी बिल्डिंग बनी हुई हैं या नई बनने वाली हैं
वो यदि टॉयलेट मतलब CWD टॉयलेट फ्रेंडली होंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये क्या किसी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में आप भेजेंगे तो उस डिपार्टमेंट में तो हो जाएगा, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट में नहीं होगा। तो मेरा कहना है कि कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट्स को यदि ये निर्देश जाएँ तो ज़्यादा आई बेहतर एम सॉरी, और हम नहीं ले पाएंगे। एक और स्कोप है हमारे पास में, रिव्यू जब होगा लास्ट ईयर के कंसल्टेशन का, उस समय हम प्रयास करेंगे, ले लेंगे। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी, QR कोड भी आपके पास उपलब्ध है, वो भी ऑनरेबल चेयर देखेंगे पर्सनली, जिसमें आप क्वेश्चंस, आप अपने सजेशंस डाल सकते हैं। मैम बस लास्ट क्वेश्चन मैम, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, तो जो भी सारे प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ग्राउंड लेवल पे हम लोग ही फेस करते हैं। इन द नेक्स्ट सेशन, आई अश्योर यू। आपका वो जो भी ग्रुप वर्क होगा ना, उस ग्रुप वर्क में आप ये बताइएगा तो ले लेंगे, क्योंकि 2 सेशंस हम ऑलरेडी थोड़ा पीछे चल रहे हैं। जी, विद द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल चेयर, आई डिक्लेयर दिस सेशन क्लोज। पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिमेन सीटेड। इन couple of minutes we will begin with the next session. Thank you.